The agendas for the discussions in today's meeting would be definition of MSMEs under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, right? And the qualifying conditions to apply for registrations under the MSMED Act, challenges and issues pertaining to delayed, defaulted, stuck payments, right, from buyers, important provisions under the MSMED Act for the benefit of MSMEs, and the solutions and way forward to resolve the issues of delayed payments, preventive measures to avoid delayed payments then can be adopted internally. So we'll be discussing about internal solutions that can be streamlined into any businesses so that you can reduce these issues at the first hand, so that these issues doesn't happen naturally. But then as a buyer, or if as a business individual, you cannot be very sure that you wouldn't enter into any dispute at any given point of time, right? Because it happens that if even if you have streamlined businesses, even if your processes are all right, but then there are some stuck payments from some buyers that you always go through, right? So in those cases, you do not actually stop it from happening, but you can in a way streamline your business in such a manner that if it happens at any given point of time, you have documentations in a way that is enough to prove your case and to enough to establish your claim, right? So this is why the internal solutions are important, right? Because when these issues happen, happen to any a business individual, it acts as their detriment, right? It acts to their detriment, it adds up to their detriment, right? And they incur losses, and those are cascading losses, right? So in a way that you should be successful if these disputes ever occur, then you have to have certain systems in place, right? So that if these disputes even happen naturally, if at any given point of time, you have all those systems in place so that you can very well establish your claim before an adjudicatory authority, right? So we'll be discussing those internal solutions that can be adopted by the businesses in their operations, and then we'll talk about the external solutions. So what happens when these issues have already arisen? Then what all we can do, in which law we should proceed. So that happens on circumstances to circumstances basis. We'll be discussing those also. And the resolution mechanism, right? The resolution mechanism is the external solutions that we'll be talking about. So the external solutions comprises of alternate dispute resolutions and litigation, right? So alternate dispute resolutions, when I say, it includes arbitration, mediation, conciliation, जिसको हम लोग एक तरह से मध्यस्थता कहते हैं हमारे हिंदी के टर्म में. So alternate dispute resolutions is madhyasthata, and the litigation is when you go to the court and you litigate. You hire an advocate, you go and you file your pleadings, your plaint, your suit in before the court, and the court decides, after appreciating the evidences and everything, it decides whether which party has a claim of what rupees against each other, right? So in that way you can streamline the external solutions also, but it depends on circumstances to circumstances basis, and it would depend whether you should go to alternate dispute resolutions or you should opt for litigation. It would depend on the peculiar circumstances of each cases, right? And so we'll discuss those also, and things to keep in mind while doing businesses for its effective management, right? We'll give some tips and suggestions that we have collated through our practical experiences, right? So going further now we'll talk about the condition precedent to be registered as MSME under MSME Act, amended by the notification dated 26/6/2020. Now it has again amended. This is an old PPT. There was some connectivity issues, so I couldn't share the new PPT at present, but I'll give you what are the changes that has happened, right? So the first category, the definition includes manufacturers and service providers. So what are enterprises? If you talk about Micro, Small and Medium Enterprises and Development Act, that is called MSMED Act. So it defines enterprises, right? So enterprises are those enterprises who are registered under the MSME. So that is how the MSME defines the enterprise, right? And in those enterprises, there are three classifications: micro, medium, and small. So micro, small, and medium. And the first category includes their enterprises includes the manufacturers and service providers in one category, and the second category includes the trader of goods. So the trader of goods are also included with this amendment, right? But then the traders are not given the benefit of using the MSCFC or
the other benefits that are given to the manufacturers and service providers, it is not extended to traders as per the MSMED Act. So if you are a manufacturer and service provider, you can go to the dispute resolution mechanism specifically designed for the MSMEs. But if you are a trader, your registration that you're a trader, and even if your registration doesn't say that you're a trader, the MSME guys have a preliminary inquiry which they do before proceeding with any cases, in which they decide whether your enterprise is micro, medium, or small. So they'll ask for your turnover certificates, your balance sheets, and everything, and that is how they will determine whether you are falling into micro category, small category, or medium category, right? So two parameters basis in which the classification is made between MSMEs are investment made in the enterprises, plant and machinery and equipment, and also the turnover immediate preceding financial year generated by the MSMEs. As I stated earlier also, that there are two parameters basis on which the classification is determined, right? The first parameter is the amount which you are investing in the plant, machinery, and equipment of your businesses. That comes under the investment criteria. So investment would also be taken into consideration, and the turnover would also be taken into consideration. And even if both are met, then only you are able to go ahead in the classification or go lower in the classification, right? So if you are a micro and both the turnover and the investment criteria has gone up and beyond the small category classification, then you would become small enterprises from micro enterprises, right? And the same is vice versa for the lower category. So if you are a small enterprises and then your turnover has decreased and it has fallen under the micro category, then you would become a micro enterprise, right? So I hope this much is clear. The parameters lay out the quantum of investment and turnover required for the registration as MSME under the MSME Act. As I stated कि ये दोनों को consider किया जाता है जब भी आपका registration और classification करना होगा MSME में, जो कि आपका है amount that you have invested in the plant, machinery, and equipment, and the turnover that you have generated in the preceding financial year. That is how your classification is determined, right? Now we'll come the classification. कि क्या है वो classification? ये देखिए, अब ये पैरामीटर और ये टेबल shows कि what are the classification and what is the limit of the classification for all these enterprises, say micro enterprises, small enterprises, and medium enterprises, right? So both parameters, investment and turnover, has to be met for an enterprise to qualify as either micro, small, or medium enterprises basis the parameters laid out here in below, right? And investment includes in its expression all tangible assets except land, building, furniture, and fittings. However, turnover shall be computed based on the preceding year's ITR filing. तो जैसा कि मैंने कहा कि आपका प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट में जो आपने अमाउंट एक्सपेंडिचर इनकर किए हैं वो इंक्लूड किया जाता है. उसमें एक्सेप्शंस है कि लैंड के जो आपने इनकर किए हैं अमाउंट, और बिल्डिंग बनाने में जो आपने इनकर किया अमाउंट, फर्नीचर और फिटिंग्स लगाने में जो आपने इनकर किया अमाउंट, दैट इज नॉट कंस्ट्रूड, दैट इज नॉट कंसिडर्ड व्हेन वी आर कंप्यूटिंग द इन्वेस्टमेंट डन इन प्लांट एंड मशीनरी, राइट? तो आप लैंड का वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे, बिल्डिंग का वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे, फर्नीचर और फिटिंग्स का वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे. आप बस कंसिडर करेंगे प्लांट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, राइट? जो चीज आपने मशीन के थ्रू और प्लांट के थ्रू वहां पे एस्टैब्लिश किया है, आपका इक्विपमेंट कोई है, तो उसका एक्सपेंडिचर काउंट होता है, ना कि लैंड का, फर्नीचर का और फिटिंग का. और टर्नओवर के लिए जैसे कि मैंने बताया है कि टर्नओवर आपका प्रीसीडिंग ITR फाइलिंग से डिटरमाइन होता है, बैलेंस शीट से डिटरमाइन होता है कि आपने कितना जनरेट किया अपने बिजनेस से अमाउंट, टर्नओवर, रेवेन्यू, राइट? सो अब माइक्रो एंटरप्राइज का पहले था 1 करोड़ to 5 करोड़. नाउ अब ये है 2.5 करोड़. इन्वेस्टमेंट मेड इन एंटरप्राइज इज 2.5 करोड़ एंड द टर्नओवर जनरेटेड एनुअली is exceeded from 5 crores to 10 crores. तो यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट मेड इन एंटरप्राइज हो जाएगा 2.5 crores और टर्नओवर जनरेटेड एनुअली हो जाएगा 10 crores, राइट? अब हम लोग जब स्मॉल के बारे में बात करेंगे तो स्मॉल में हमारा ये चीज एक्सीड होके आ गई है 25 crores, right? Investment made in enterprise is now 25 crores.
10 करोड़ जहां पे है अब वो बढ़ के 25 करोड़ हो गया है, और टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ कर दी गई है। सो अगर आपका इन्वेस्टमेंट मेड इन एंटरप्राइज 25 करोड़ है या 25 करोड़ के नीचे है, और आपका टर्नओवर साइमल्टेनियसली 100 करोड़ से या 100 करोड़ के नीचे है, नॉट लेस देन 10 करोड़ माइंड यू, बिकॉज आपका 10 करोड़ के नीचे चला जाएगा तब आप माइक्रो में चले जाएंगे। तो अगर आपका 10 से 100 के बीच में कहीं है तो आप स्मॉल में जा सकते हैं। एंड द सेम इज फॉर मीडियम। मीडियम में अब ये 100 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट मेड इन एंटरप्राइजेस है ये बढ़ के 125 करोड़ हो गया है, और जो टर्नओवर जनरेटेड एनुअली जो 250 करोड़ की लिमिट रखी गई थी अब वो 500 करोड़ की हो गई है। तो अभी हाल में ही ये अमेंडमेंट आया है जिसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का जो लिमिट था, पेक्यूनरी लिमिट फॉर देम टू गेट रजिस्ट्रेशन, वो बढ़ा दी गई है। जैसे कि अब मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, तो माइक्रो एंटरप्राइजेस के बारे में जब हम बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट मेड इन एंटरप्राइज 1 करोड़ से बढ़ा के 2.5 करोड़ कर दी गई है, और टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ कर दी गई है। स्मॉल एंटरप्राइजेस, व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट मेड इन एंटरप्राइजेस, इट हैज बीन एक्सीडेड फ्रॉम 10 crores to 25 crores, and then the turnover is 100 crores, right? अब 10 करोड़ से 25 करोड़ हो गया है इन्वेस्टमेंट मेड इन एंटरप्राइजेस, और टर्नओवर जनरेटेड एनुअली हो गया है 100 करोड़, राइट? अब मीडियम जो है अब 100 करोड़ से इन्वेस्टमेंट मेड इन एंटरप्राइजेस 100 करोड़ से 125 करोड़ हो गई है, और टर्नओवर जनरेटेड एनुअली इज ऑलमोस्ट डबल्ड, इट इज 500 करोड़। और एक और बात आपको ध्यान में रखना होगा कि जो एमएसएमई का जो बेनिफिट्स है, जिसमें डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का एक स्पेसिफिक आपको मैकेनिज्म दिया जाता है माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को, वो मीडियम एंटरप्राइजेस को भी एक्सटेंडेड नहीं होता है। सो अगर आप एमएससीएफसी जाना चाहते हैं, आप एमएसएमई के डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म में जाना चाहते हैं, तो आपको पहले बात ये ध्यान रखनी होगी कि आप ट्रेडर ना हो रजिस्ट्रेशन में। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप एमएसएमई के बेनिफिट्स, स्पेसिफिकली जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, उसको यूज नहीं कर सकते। और सेकेंडली, अगर आप मीडियम एंटरप्राइजेस हैं तब भी आप एमएसएमई के जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है उसको यूज नहीं कर सकते। आपके लिए दूसरे मैकेनिज्म है, जैसे कि जो कि हम लोग आगे बात करेंगे कि और क्या क्या मैकेनिज्म है। और बाकी जो एमएसएमई का जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है वो एक्सक्लूसिव है ओनली माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, राइट? अब हम लोग आगे चलते हैं। So reasons for delayed payments and its consequential effects on MSMEs, right? So the first is कि not documenting or recording of the transactions, delivery of goods, materials, or performance of services without any work, purchase orders, not recording terms and conditions in an agreement, not adept with quick turnarounds for reserving rights, etc. The second is extended credit period, right? And the third is challenges faced due to competition in the relevant market, industry specific challenges. तो पहले बात तो ये है कि सबसे पहला जो चीज होता है कि कोई भी whenever we are entering into any transactions, if it is not recorded, then it becomes really difficult for any party in that transaction to go before an adjudicatory authority and prove it to them that these were the terms that the parties agreed upon, right? Because those terms are not recorded anywhere. So the only possible way out of this is that you record each and every transactions that you enter, right? You record each and every transactions, you record the terms and conditions that the parties are entering and have agreed upon that transactions, and those terms and conditions should be recorded in writing, signed by both the parties, and it should be shared in offline basis also, online basis also, so that the other party ये ना कह सके कि ये साइन फ्रॉड है और ये है, ये मैं इसके एग्जिस्टेंस को झुटला देता हूं और मैं इसका एग्जिस्टेंस से वाकिफ नहीं हूं, आई डू नॉट नो वेदर दिस अग्रीमेंट एग्जिस्ट और नॉट। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि आप हार्ड कॉपी में जब शेयर करते हैं तो बी माइंडफुल कि आप सेम कॉपी जो है एक बार उनके पर्सनल ईमेल आईडी या फिर उनके कंपनी के पर्सनल ईमेल आईडी, उनके एंटरप्राइज के पर्सनल ईमेल आईडी पे भी शेयर करें, सो दैट इट गेट्स रिकॉर्डेड एंड एस्टैब्लिश्ड कि जैसा हार्ड कॉपी आपके पास होगा, जो आप हार्ड कॉपी में एग्जिस्टेंस बता रहे होंगे कि ये टर्म्स थे, दिस इज व्हाट द पार्टीज अग्रीड अपॉन, अगर आप ये बताएंगे तो आप वो चीज को एस्टैब्लिश कर सकते हैं अपने सॉफ्ट कॉपी से, उस मेल से जहां पे आपने वही डॉक्यूमेंट कंपनी को शेयर करे थे, राइट? तो इस वे में आपके टर्म्स जो हैं, जो रिकॉर्डेड हैं, वो सबके सामने रहते हैं। एडजुडिकेटरी अथॉरिटी, जो भी एडजुडिकेशन में बैठेगा, थर्ड इंडिपेंडेंट आदमी, उसको पता रहेगा कि आप दोनों ने कौन कौन से टर्म्स पे अग्री किए, ये सारे कंडीशंस थे, ये सारे टर्म्स थे इस ट्रांजैक्शन के, एंड उस हिसाब से पार्टीज के ऑब्लिगेशन, पार्टीज ने अगर ब्रीच किया है,
पेमेंट टर्म्स का ब्रीच हुआ है, तो ये सब आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि आपका पेमेंट टर्म्स परचेज ऑर्डर में कहीं लिखा नहीं था, कहीं डिलेड पेमेंट पे इंटरेस्ट की बात नहीं की गई है, तो अब आप आके अचानक से एडजुडिकेटरी अथॉरिटी के सामने ये नहीं कह सकते कि बहुत लेट हो गया पेमेंट मिलने में, क्योंकि आपने कहीं तो पेमेंट टर्म्स लिखा ही नहीं है, राइट। और अगर लेट भी हो गया है तो डिलेड पेमेंट का जो इंटरेस्ट है, जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ यू बीइंग एन एमएसएमई आपको स्टैट्यूटरीली मिल सकता है। बट देन अगर में जाएंगे, अगर आप मान लीजिए मीडियम होते हैं या फिर ट्रेडर्स होते, तो अगर आपका penal interest mentioned nahi hai, so you cannot claim those interest on the delayed payment, right? Because that is not written, that is not recorded, that is not the parties agreed upon, right? That is not something on which the parties agreed upon. So हमेशा mindful रहिए कि आप purchase order दे, अगर आपका कोई आप किसी को कोई सर्विस लेना चाहते हैं या फिर कोई सामान लेना चाहते हैं, प्रोडक्ट, इफ यू आर ऑर्डरिंग सम प्रोडक्ट, ऑर्डरिंग सम सर्विसेज फ्रॉम एनी एंटरप्राइजेस, देन बी माइंडफुल दैट यू इशू परचेज ऑर्डर्स। एंड व्हेनेवर आपका, अगर आपने किसी को सर्विसेज दिया है या प्रोडक्ट दिए हैं, तो आप ये करें कि आपको परचेज ऑर्डर सामने वाले से मिले, टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप नेगोशिएट कर सकते हैं। अगर उसमें पेमेंट टर्म्स मान लीजिए 90 डेज की है, आपका एमएसएमई 45 डेज का पेमेंट टर्म्स की लिमिट देता है, तो आप 45 डेज के लिए नेगोशिएट कर सकते हैं उनसे कि 90 डेज इज टू मच और 45 डेज इज स्टैट्यूटरी लिमिट अंडर द एमएसएमई। तो आप ये सारी चीजें एमएसएमई एक्ट के थ्रू अपने परचेज ऑर्डर्स में टर्म्स एंड कंडीशंस को नेगोशिएट करके डाल सकते हैं, जो कि अदर पार्टी मना नहीं कर सकती, क्योंकि स्टैट्यूटरी लिमिट भी वही है, राइट। सो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर पैसे आपके पेमेंट टर्म्स में नहीं मिलते तो व्हाट आर द इंटरेस्ट दैट यू विल बी चार्जिंग अपॉन, राइट। आपको ये सब मेंशन करने होंगे। आपको ये सब भी मेंशन करना होगा कि एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स कैसा होगा। अगर मान लीजिए कि आपने गुड्स दिया, आपने सर्विसेज दिया और आपने इनवॉइसेस रेज कर दिए और वो इनवॉइसेस क्लियर नहीं हो रहे हैं, राइट। और मान लीजिए कि उस आगे वाली पार्टी ने, जो बायर है, उसने कोई डेफिशिएंसी, कोई अपना वो भी नहीं बताया है आपसे कि मुझे आपका सामान पसंद नहीं आया या फिर मुझे आपकी सर्विसेज पसंद नहीं आई। तो अगर ये नहीं बताया है उन्होंने, तो एक रीजनेबल टाइम आप बोल सकते हैं कि आफ्टर 15 डेज इट वुड बी कंसिडर्ड एज डीम्ड एक्सेप्टेंस। अगर आपने 15 दिन में हमें नहीं बताया कि आपको कोई दिक्कत थी हमारे सामान से, हमारे सर्विसेज से, तो 15 दिन में हम मान लेंगे कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है एज इट इज। तो आप ये सारी चीजें, टर्म्स वर्म्स जो है, वो आप नेगोशिएट करके अपने परचेज ऑर्डर्स में, इफ यू हैव रिसीव्ड द परचेज ऑर्डर्स, तो आप अपने इनवॉइस में ये सब डाल सकते हैं, राइट, व्हेनेवर यू आर रेजिंग इनवॉइस अपॉन द बायर टू क्लियर द पेमेंट, right? So all these terms becomes really important because when you are going before the adjudicatory authority and if your payment are stuck, right, so you have all those recorded terms that you can refer to and ask the adjudicatory authority to to direct the other party to comply and to comply with those terms, because those are the terms that the parties have agreed upon. So मैंने आपको एक तरह से बता दिया कि how written communications is very much important in any transaction, right? आप अगर किसी को employment देते हैं, आप अगर सर्विसेज दे रहे हैं, अगर आपका ऑनलाइन सर्विसेज चल रहा है, तो आपको टर्म्स ऑफ यूज लिखने चाहिए। अगर आपके वेंडर्स हैं, तो आपका उनके साथ क्या कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है और वो वेंडर्स का आगे कस्टमर्स के साथ क्या कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस है, तो आपको ये सब भी माइंडफुल रहना होगा। सो फॉर, जैसे कि अगर हम लोग ब्लिंकिट या फिर स्विगी या फिर जोमेटो या फिर अर्बन क्लैप की बात करें, तो अर्बन क्लैप और ये सब क्या करते हैं, ये सब सर्विसेज देते हैं और ये सब सर्विसेज के लिए वेंडर्स को रखते हैं। वेंडर्स इनके इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। तो अगर आप इनके कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स देखेंगे, तो अर्बन क्लैप का एक कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स उनके वेंडर्स के साथ होता है और एक जो होता है वो कस्टमर्स के साथ होता है। तो उसमें आपको अलग अलग टर्म्स, कंडीशन, ब्रीचेस मेंशन करने रहते हैं, ताकि आगे अगर वेंडर्स और कस्टमर्स के बीच में भी कुछ हो, तो आपको एज अ इंटरमीडियरी ज्यादा लॉसेस का सामना ना करना पड़े। अब हालांकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अमेंडमेंट से इंटरमीडियरीज पे भी लाइबिलिटी आ गई है, बट देन पहले इंटरमीडियरीज जो थे, ये इस कॉन्ट्रैक्चुअल अलग अलग करके, टर्म्स अलग अलग करके, उनका कॉन्ट्रैक्चुअल अपना कस्टमर के साथ रख के एंड अगेन अ डिफरेंट वन वेंडर के साथ रख के बहुत इजीली रिगल आउट कर लेते थे किसी भी डिस्प्यूट से, क्योंकि उनका टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत अच्छे से रिकॉर्डेड है। उन्होंने पहले से ही लिख दिया कि अगर आपका वेंडर और आप में कोई पर्सनल
वो हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो हम तो भाई आपको बस कनेक्ट कराया है, ये इंटरमीडियरी का कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगा। तो पहले ये लोग बहुत ज्यादा रिगल आउट करते थे इंटरमीडियरी इंटरमीडियरी कह के, बट अब ये लॉ ने इसको एड्रेस कर दिया है। बट देन अगेन मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स और रिलेशंस हर एक आदमी के साथ जिससे आप डील कर रहे हैं बहुत क्लियर है, बहुत वेल डिफाइंड है, तो आप इन सारे सिचुएशंस से बहुत अच्छे वे में निकल सकते हैं अगर आप उसमें जाते भी हैं। If you are taken into those situations, then also you have a better case because all of it is recorded. Any adjudicatory authority would refer to those terms and conditions before coming to a decision, informed decision. तो इस वे में वो informed decision ले सकता है और आपके फेवर में ये आए, ये बहुत ज्यादा चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। अब सेकंड में मैं बात करूंगा एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड की। जैसे कि मैंने कहा 45 दिन का क्रेडिट पीरियड एमएसएमई एक्ट देती है, तो मेरे व्यू में आपको 45 दिन से ज्यादा का किसी को देना नहीं चाहिए। इन माय व्यू अगर आप मुझसे पूछे तो 30 डेज इज अ रीजनेबल एनफ टाइम टू लिमिट द क्रेडिट पीरियड टू एनी पार्टी। अगर आप एक्सटेंड कर रहे हैं इससे ज्यादा तो फिर आप उस पे इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट है वो लेट गो कर रहे हैं, और वो पैसे की लिक्विडिटी जो है, जो 45 दिन 90 दिन आपको उसके बाद मिलेगी, वो 90 डेज का जो आप लिक्विडिटी इसको यूज कर सकते थे, उसको अपने वे में डिस्चार्ज कर सकते थे, वो लेट गो कर रहे हैं। और देयर इज नो वे कि आप 45 दिन का इंटरेस्ट कंपोनेंट क्यों जाने देंगे अगर एमएसएमई ही आपका 45 दिन पे क्रेडिट पीरियड रोक देती है और उसके बाद से इंटरेस्ट इंपोज कर देती है। तो मेरे हिसाब से आपको 45 डेज की लिमिट रखनी चाहिए। अगर कोई आके आपको बोलता है कि हम 90 डेज का क्रेडिट पीरियड रखना चाहते हैं, हम 120 डेज का क्रेडिट पीरियड रखना चाहते हैं, तो आप उनको सीधा मना कर दे। आप ये बोले कि एमएसएमई एक्ट में 45 डेज की लिमिट है, जिसके बाद से स्टैट्यूटरी इम्पोजिशन है पेनल्टी की, जो इंटरेस्ट है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो आप अगर वो देंगे तो आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन 120 डेज, यू पे माई अमाउंट अलॉन्ग विद दैट इंटरेस्ट, और इफ नॉट देन क्लियर माई ड्यूज इन 45 डेज, राइट। आप जितना एक्सटेंडेड पीरियड देंगे उतना ही देर से आपको पैसे का रियलाइजेशन होगा, और अगर उसके बाद डिलेड पेमेंट होती है तो वो बहुत ज्यादा लंबा जाता है, क्योंकि 3 महीने बाद से तो आप उसको फॉलो अप करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपने ही 3 महीने का एक्सटेंडेड पीरियड दे दिया है। अगर उसके बाद उसने 2-3 महीने और टाला आपका, तो आप ऑलरेडी 6 महीने लेट है, राइट। तो आप जितना लेट करेंगे उतना रियलाइजेशन आपको लेट से होगा। सो दैट इज वाई क्रेडिट पीरियड को एक लिमिट में रखना, रीजनेबल टाइम फ्रेम में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। Now the third one is challenges faced due to competition in the relevant market, industry specific challenges such as disrupted availability of raw materials, competitive rates with minimal margins of profit। देखिए ये सब जो कमर्शियल विजडम्स है बिजनेसेस की, उसके बारे में हम आपको ज्यादा तो नहीं बता सकते। We cannot go and substantiate on these commercial wisdom because it differs from industry specific it differs from industry to industry, right? So but then in if I were to reduce it to a simpler term, then I would say that you always should have a lot of vendors that you can bank upon, right? If you are banking upon, let's say 2 vendors for sourcing of your raw materials, then those 2 vendors are less of a you shouldn't be that much of dependent on a mere 2 vendors for your raw materials, is what I'm trying to make a point, right? Because आपके अगर मान लीजिए कि डिस्ट्रप्शन हो जाती है अवेलेबिलिटी में, सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन आता है, then the 2 vendors that you were relying upon for the sourcing of your raw materials becomes difficult, right? The dependency on them becomes difficult. And let's say अगर डिसरप्शन से वो दोनों वेंडर्स आपको अब रॉ मटेरियल्स नहीं दे पाएंगे, देन योर operations become disruptive, right? So it is always necessary to have a list of vendors that you can rely upon. अगर उसमें से 3-4-5 लोग is not available at any given point of time, then you can go out and you can consider other options that you have in the list. So in that way your operation is continued, right? And आपको डिसरप्शन से, सप्लाई चेन की दिक्कतों से, स्ट्राइक से, ले ऑफ की दिक्कतों से, इन सब की चीजों से आपका जो वो है डिपेंडेंसी है वो बहुत कम हो जाएगी, बिकॉज यू आर डिपेंडिंग अपॉन अ पूल ऑफ
vendors or let's say the customers that you have. अगर अगर मान लीजिए कि I being a practicing advocate only have two clients, right? And I'm representing them before courts, I'm representing them before clients, and I'm doing negotiations, drafting agreements from them, going and litigating from them. But then it is only two clients, right? If they ever want to go away from me, or they want to consider other legal representations, then my operations become disruptive, right? तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपके कस्टमर लिस्ट बड़े होने चाहिए, आपके वेंडर लिस्ट बड़े होने चाहिए, जहां से आप सोर्स करते हैं रॉ मटेरियल, वो आपके पास एक से ज्यादा होना चाहिए। एक तो बहुत ही ज्यादा कम है, मेरे हिसाब से 4-5 होने चाहिए। दैट डिपेंड्स ऑन हाउ बिग अ बिजनेस यू आर रनिंग। तो उस हिसाब से आप अपना कमर्शियल विजडम लेके उस लिस्ट को मेंटेन कर सकते हैं। तो इस वे में आपके कंपटीशन से या फिर रेलेवेंट मार्केट इंडस्ट्री स्पेसिफिक चैलेंजेस से, डिस्ट्रप्शन से आपको उतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी, राइट? कंपटीशन के चैलेंजेस से मतलब कि मेरा ये कहना है कि अगर मान लीजिए कि आपके बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं और सब लोग जो है रॉ मटेरियल्स कहीं से बहुत कम दाम में सोर्स कर रहे हैं, अब आपको वो प्राइस मैच करना है, वहीं से सोर्स करना है, राइट? तो अब आप इस चीज को लेके अपना प्रॉफिट, मिनिमल प्रॉफिट रखेंगे और मैच करना चाहेंगे कंपटीशन में बने रहने के लिए। बट देन यहाँ पे आपका लिस्ट काम आता है, जहां पे अगर मान लीजिए डिस्ट्रप्शन हो और एक ही रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का वेंडर है जिससे सब लोग आप लोग ले रहे हैं, तो इट इज नेचुरल कि ही विल समडे, नॉट टुडे, बट ही विल इंक्रीज देयर प्राइस पॉइंट, बिकॉज दे नो कि आप बहुत सारे जो कंपटीशन है उन्हीं से ले रहे हैं, राइट? सो आप यहाँ पे मिनिमल प्रॉफिट मार्जिन रखने के बजाय अगर अपना लिस्ट बहुत बड़ा रखते हैं, तो आप इन अ वे हॉलिस्टिकली इसको डील करेंगे, राइट? अगर उनके पास मान लीजिए कि प्राइस बढ़ जाती है उस वेंडर की जिसपे सब रिलाई कर रहे थे, देन आपके पास अदर वेंडर्स है, राइट? तो आप उसमें कंपटीशन में रिलेवेंट रह सकते हैं। आपको कंपटीशन के वजह से अपना प्रॉफिट मार्जिन एकदम मिनिमल नहीं रखना पड़ेगा। और इसका एक और वे आउट है कि आप जिस टेरिटरी में काम कर रहे हैं, वो टेरिटरी छोड़ के आप ज्यादा टेरिटरी अपना एक्सपैंड कर दें, तो आपका कंपटीशन, आपका कस्टमर एक्विजिशन, आपका कस्टमर जो टारगेटेड कस्टमर्स है इन टेरिटरी, वो भी बढ़ जाता है। तो आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा, आप उसको थोड़ा सा हाई भी कर सकते हैं, आप अपना मैक्सिमम प्रॉफिट भी ले सकते हैं इफ यू हैव अ लार्जर टेरिटरी टू कवर, राइट? कि अगर मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा कंपनी दिल्ली में बिजनेस कर रहा है, उसका प्राइस पॉइंट आप मैच कर पाएंगे अगर आप दिल्ली में होंगे, बट आपका प्रॉफिट मार्जिन मिनिमल है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ दिल्ली में रहें, आप नियर अबाउट सिटीज में जाएं। यू कैन गो टू मेरठ, यू कैन गो टू पलवल, यू कैन गो टू ऑल दोज नियर बाई सिटीज इन विच, जहां पे वो बड़े प्लेयर नहीं पहुंचे हैं अभी। तो आप वहां पे जाके अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है फैक्टर कर सकते हैं, जो कि आपने अभी मिनिमल रखा था उनसे compete करने के लिए। So these are the things that you can consider in our view to tackle the internal issues of competition relevant market में minimal profitability के लिए। So now we'll come to the next point. No bargaining power with buyers to negotiate terms accordingly, market share reductions, alternative materials or services against that of MSMEs, etc. तो इसमें नो बार्गेनिंग पावर्स विद बायर्स जो है वो बेसिकली यही मीन करता है कि ज्यादातर एमएसएमईज व्हेन दे हैव ट्रांजैक्शंस और डीलिंग विद लार्ज कॉर्पोरेशंस, देन मोस्टली आई हैव सीन दैट द लार्ज कॉर्पोरेशंस गिव यू अ बॉयलर प्लेट कॉन्ट्रैक्ट, राइट? बॉयलर प्लेट कॉन्ट्रैक्ट में उनके अपने ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड दे से दैट दे कैन नॉट नेगोशिएट अ लॉट बिकॉज दिस इज द term, or this is the agreement that their legal team has formulated and they cannot deviate from it, right? Because it is in their system. But that is not correct. आपको अपने बिजनेसेस के लिए किसी पे बार्गेनिंग पावर को इतना कम करने की जरूरत नहीं है कि आप अपने ही बिजनेस को डिट्रीमेंट कर ले, राइट? तो आपने हमेशा देखना है, हमेशा बॉयलर प्लेट क्लॉजेस, बॉयलर प्लेट कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने हैं, उसमें वो सारे टर्म्स को फ्लैग आउट करना है जो कि आपके लिए डेट्रीमेंटल हो सकते हैं, और उसके लिए आपको नेगोशिएट भी करना चाहिए उनसे, बी इट टाटा, रिलायंस और एनी लार्ज कॉर्पोरेशंस दैट यू कैन थिंक ऑफ, कि आपका जो एमएसएमईज का जो डीलिंग है, आप जो हमारे साथ डीलिंग कर रहे हैं, दैट cannot happen in this way because this would be detrimental for our businesses. That might be कि अगर आपके एक आध दो डीलिंग्स नहीं जाते हैं उस अंडरस्टैंडिंग की वजह से, but then trust me, if you are
if you are confident that this is how I want to conduct my businesses, then the customers would come, the customers would understand at one point of time. And if they want to deal with you, if they like your services, they like your product, then they would compromise with the terms also. So you do not always have to compromise on the terms when you're dealing with the large corporations or when you're dealing with large corporate houses, is what I'm trying to make a point here. तो आपका बार्गेनिंग पावर जो है आप ट्राई कर सकते हैं, इवन इफ इट डजंट फ्रक्टिफाई, इट इज अनदर वे, इट इज अनदर स्टोरी, राइट? बट देन आपने कम से कम ट्राई किया नेगोशिएट करने का, आपने जो आपने ट्रांजैक्शंस थी अपने बिजनेसेस के लिए जितना फेवरेबल हो सकती थी आपने बनाने की कोशिश करी, एंड देन दोज आपने जो कोशिशें की है, अगर वो चीज फ्रक्टिफाई हो जाती है, तो देन दो स्मॉल चेंजेस हैं गोज अ लॉन्ग वे इन लार्ज डीलिंग एंड इन हैविंग अ प्रोफेशनल रिलेशंस व्हिच गोज ऑन फॉर इयर्स, राइट? अगर मान लीजिए कि आपने कोई बार्गेनिंग नहीं की और आपने डेट्रीमेंटल अग्रीमेंट साइन कर दिया है किसी के साथ, और आप उनके साथ एक बहुत लंबे प्रोफेशनल रिलेशन में रहे हैं, तो अब आपका जो हर बार डिले हो रहा है, मान लीजिए 2-3 महीने 4 महीने का डिले होता है, तो अब आप उस 4 महीने के लिए बार बार उस कंपनी को सू भी नहीं कर सकते इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि वो ऑनगोइंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप है और वो बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है। तो आपका बिजनेस भी चल रहा है, बट इन अ वे पेमेंट ऐसे नहीं आ रहे हैं कि आपको उतना प्रॉफिट हो, तो ये बात वहां आके अटक जाती है, राइट? तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि बस और बस आपका रेवेन्यू ना बढ़ता रहे, आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, आपका बिजनेस एक्सपैंड हो, और वो तभी होगा जब पेमेंट आपको टाइम पे मिलेंगे या फिर टाइम से पहले मिलेंगे। अगर डिले हो रहा है तो आपको इंटरेस्ट के साथ मिले, और इन सब चीजों के लिए आपको बार्गेन करना पड़ेगा टर्म्स में। अगर आपके फेवरेबल नहीं है, आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा उन टर्म्स को लेके। आप कुछ भी साइन नहीं कर सकते जो भी आपको दिया गया है। आप किसी भी प्रोफेशनल को दिखाएं, आप उसको एक बार वेट कराएं कि अगर मैं ये ट्रांजैक्शन में, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन में घुसता हूं इस टर्म्स के साथ, तो आगे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और आगे कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है किसी क्लॉज पे, तो आप उसको जाके ट्राई करें कि आप उसको नेगोशिएट करा के अपने फेवर में लाएं। सो ये पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहता था आपको। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। And the second last is ineffective correspondences during a transaction, lack of recorded communication between parties, reserving the right to claim liquidated damages if any, lack of acknowledgement from the buyer regarding inequivocal acceptance, etc. तो मैंने इसको पहले ही पॉइंट में इन अ वे बता दिया था कि इफेक्टिव कॉरेस्पॉन्डेंसेस होनी चाहिए। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप कोई गुड्स देते हैं, तो आपको मेल में बताना चाहिए कि दिस गुड आई हैव सेंट इट थ्रू दिस ट्रांसपोर्ट एजेंसी। एक BLT रिसीट होती है, आप वो लगा सकते हैं फॉर एस्टैब्लिशिंग कि आपने इसको भेज दिया है, या फिर आपने सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर दी हैं तो आप उसका फोटोग्राफ्स लगा सकते हैं। आप अगर कहीं गए थे वो सर्विसेज देने के लिए, तो आप अपनी एंट्री एग्जिट लगा सकते हैं वहां पे। एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट यू कैन यूज इन द इफेक्टिव कम्युनिकेशंस दैट यू आर मेकिंग टू द बायर। आप ये बोल सकते हैं कि हमने आपको ये दे दिया है, ये सर्विसेज दे दिया है, अब हम आपको इनवॉइस रेज करेंगे, दिस वाज द अग्रीड टर्म्स, और आप उनको इनवॉइस रेज कर सकते हैं। अगर उनका पेमेंट टर्म्स मान लीजिए 5 दिन में खत्म होने वाला है एंड यू हैव नॉट रिसीव्ड अ पेमेंट, देन यू हैव टू रिमाइंड देम दैट 5 दिन के बाद उनका पेमेंट टर्म्स खत्म होने वाला है, दे हैव टू मेक पेमेंट्स टू यू। सो ये सारी चीजें इफेक्टिव कॉरेस्पॉन्डेंसेस में आती है। अगर मान लीजिए आपका पेमेंट नहीं आ रहा है एंड इट हैज ऑलरेडी बीन डिलेड, इट इज ऑलरेडी वेल एंड बियॉन्ड ओवर द पेमेंट टर्म्स that you parties have agreed upon, that the two parties have agreed upon, then you can also communicate that these are the losses, and these are the losses due to the delayed payments which are incurred by you, and all of these would be recoverable from the buyer because this all has happened due to his delayed payment। तो ये सब कॉरेस्पॉन्डेंस आपको करनी पड़ेंगी, जब हो तब करनी पड़ेंगी। लेट्स से कि अगर आपको इस महीने किसी से 2 करोड़ रुपए आने थे और आपने वो सोचा था कि वो 2 करोड़ रुपए जब आएंगे तो आई विल पे आउट माई एम्प्लॉइज सैलरी, आई विल पे आउट द रेंट, आई विल पे आउट द यूटिलिटी बिल्स एंड एवरीथिंग। तो अगर आपको वो पेमेंट नहीं आता है जहां तक कि आपने सोचा था, तो आपको वहां पे लिख के आगे वाले को बताना पड़ेगा कि आई एम फेसिंग लॉसेस, माय ऑपरेशंस आर डिसरप्टेड बिकॉज ऑफ दिस, एंड दीज आर द लॉसेस दैट आई एम फेसिंग ऑन अ डेली बेसिस बिकॉज ऑफ योर डिलेड पेमेंट, एंड इफ यू डू नॉट मेक मी पेमेंट इन दीज डेज or in this much time, then all of these claims would be added in our original payment।
तो आप ये सब कोरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए फिर भी पेमेंट नहीं आता, तब आप जब आप उसके साथ लास्टली डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में जा ही रहे हैं, कोर्ट जा ही रहे हैं, तो व्हाई नॉट यू गो एंड आस्क फॉर ऑल द लॉसेस दैट यू हैव इनकर्ड, राइट? नाउ यू, अब आप जब उसके साथ कोर्ट जाएंगे ही, तो आप सिर्फ इनवॉइस अमाउंट क्यों मांगेंगे उनसे? अगर आपने ये सब कॉरेस्पॉन्डेंसेस करी हैं, आपने उनको दिखाया है कि ये सारे लॉसेस मैंने इनकर किए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर डिलेड payment issues, then you can claim all those additional damages, losses that you have incurred due to his breach. That is, the payment is not done in time, right? तो इसीलिए effective correspondence जरूरी है, right? और difficulty in realizing payments from buyers, cash transactions, etc. अब सेकेंडली, अब लास्टली मैं आपको ये बोलूंगा कि कैश ट्रांजैक्शंस इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, जहां पे रिकॉर्ड नहीं हो पाता है अच्छे से कि ये ट्रांजैक्शंस कितने का हुआ था, राइट? ये ज्यादातर होता है टैक्स इवेजन की वजह से, कि आप जाते हैं किसी जगह पे, आप वहां पे सर्विसेज दिया, आपने मान लीजिए 10 लाख की सर्विसेज दे दी, एंड आपने कहा कि आप मुझको 10 लाख रुपए ऐसे ही कैश दे दीजिए, और invoice नहीं रेज करूंगा, in this way I do not have to pay the taxes. Now let's say कि he pays you 7 lakh rupees in cash and says कि 30 days में वो आपको 3 lakhs remaining 3 lakhs पेमेंट कर देगा, and now after 30 days he says कि there is no due amount remaining to you, I have paid everything and there is nothing on record जिससे आप प्रूफ कर पाए कि आपका 3 लाख रुपए बचा है। तो आप नहीं कर पाएंगे प्रूफ, क्योंकि अगर आप कोर्ट जाएंगे तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि मैंने 10 लाख रुपए का इनसे कैश ट्रांजैक्शंस किया था, और कैश ट्रांजैक्शंस जब आप बोलेंगे तो द कोर्ट वुड नो कि आपने टैक्स इवेजन किया है। नाउ आपको एक चीज बहुत माइंडफुल रहिएगा इस बात को लेके कि सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत रीसेंट जजमेंट है, मैं आपको बहुत सारे जजमेंट्स बताऊंगा जो रिसेंटली आए हैं, जो आपको स्मॉल बिजनेसेस को बहुत इम्पैक्ट करते हैं। तो अभी एक रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये कहा गया है कि व्हेनेवर, अगर प्लीडिंग्स में किसी भी कोर्ट के सामने आप 3 लाख रुपए से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शंस दिखाते हैं या उसकी बात करते हैं, तो कोर्ट का काम है सब कुछ छोड़ के सबसे पहले इनकम टैक्स को रिपोर्ट करना वो ट्रांजैक्शन। तो अब आप बहुत ज्यादा माइंडफुल हो जाइए कि अगर आपने कोर्ट के सामने ये कहा भी कि मैंने 3 लाख रुपए से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन किया है किसी के साथ, तो सबसे पहले कोर्ट क्या करेगी कि वो इनकम टैक्स को रिपोर्ट करेगी वो ट्रांजैक्शन। अब फिर आपको इनकम टैक्स से शो कॉज नोटिस आएगा, फिर आपको वो ट्रांजैक्शन जो है वो इनकम टैक्स को समझाना पड़ेगा कि आपने कैसे किया, कैसे आपको टैक्स देना है, उस पर नहीं देना है। दैट इज अनदर टेंशन दैट यू वुड बी टेकिंग, राइट? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कैश ट्रांजैक्शंस ना करें। आप यहाँ पे 18%, 28% जीएसटी के लिए आप बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट, जो आपका ओरिजिनल अमाउंट है, आप लेट गो करेंगे। एप्रीहेंशन होता है उसको लेट गो करने का, अगर सामने वाली पार्टी डिनाई कर देती है तो, और अगर डिनाई भी कर देगी तो फिर आप कोर्ट भी नहीं आ सकते ये बोल के कि मैंने कैश ट्रांजैक्शंस किया था, नहीं तो फिर आपको इनकम टैक्स को जाके एक्सप्लेनेशन देना होगा। तो these are all the things that you should be mindful about. Now we'll go to the next slide. कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट्स ड्यू टू द चैलेंजेस। मुझको ज्यादा कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट्स पे सब्सटैंशिएट करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको जैसे कि बताया कि अगर आपको टाइम पे पेमेंट नहीं मिलते हैं तो बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं, जैसे कि आपका रेसिप्रोकेटिंग वो होता है कि आपको, या फिर फर्दरेंस आपका ऑब्लिगेशन होता है, फर्दर ऑब्लिगेशन होता है किसी के टूवर्ड्स, आपका किसी के टूवर्ड्स है, आपका किसी और के टूवर्ड्स है, उसका किसी और के टूवर्ड्स होगा, राइट? तो अगर मान लीजिए कि किसी भी इस चेन में कोई भी आदमी एक बार डिले करता है पेमेंट, तो ये चेन में सारे स्टेक होल्डर्स जो है वो सब इफेक्ट होते हैं, राइट? अगर मान लीजिए कि मुझको 1 लाख रुपए मिलने थे और वो मैं आगे किसी को देना चाहता था, और मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि मेरा पेमेंट टर्म्स इनके साथ 60 डेज का है, सो विद इन 60 डेज आई विल आल्सो गिव यू एज सून एज आई रिसीव दिस अमाउंट। नाउ आई हैव नॉट रिसीव्ड दिस अमाउंट, now the other person would not get the money and the person that he is obligated towards would not get the money. तो ये पूरा चेन में है, इसको कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं, कि अगर आपको कहीं एक चेन में कहीं एक पार्टी से आपको पैसा नहीं मिला तो वो आगे का सारा चेन जो है वो डिसरप्टेड हो जाता है। सो इसमें सबसे पहला है लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। आपके रेवेन्यू में, आपके ट्रांजैक्शंस के कागज में वो सब शो करेंगे कि आपने इनको इतना सर्विसेज दे दिया है, आपने इनको इतना प्रोडक्ट दे दिया है, आपके रिसीवेबल्स इतने हैं, बट वो रिसीवेबल्स आपके हाथ में नहीं है। बस वो है कि आपको 5 करोड़ रुपए इनसे लेना है, बट देन यू आर नॉट एबल टू ऑब्टेन दैट 5 करोड़ ऑफ रुपीज फ्रॉम देम। सो दैट इज लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज फर्स्ट, अगर आपको टाइम पे पेमेंट नहीं मिलती है तो।
The second is lost claims due to not having enough evidence materials on record to prove default. जैसा कि मैंने बताया कि आपके क्लेम्स जो है वो खो जाएंगे, लूज कर जाएंगे आप वो क्लेम्स को मांगने से, अगर आपने कैश ट्रांजैक्शंस किया है, अगर आपने रिटर्न में नहीं रखा है अपना परचेज ऑर्डर्स और इनवॉइसेस। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट बार है, अगर परचेज ऑर्डर नहीं है आपके पास, इनवॉइसेस नहीं है आपके पास, तो अगर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम इम्पॉसिबल है आपके लिए क्लेम कर पाना, बट देन इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि आप बस अपने एक्शंस के थ्रू प्रूव कर सकते हैं कि दीज आर द टर्म्स दैट वी अग्रीड अपॉन, देयर इज नो अदर वे टू प्रूव द टर्म्स दैट द पार्टीज हैव अग्रीड अपॉन एक्सेप्ट देयर एक्शंस इन द ट्रांजैक्शन, राइट। अगर मान लीजिए कि मैं कोई सर्विसेज दे रहा हूँ, लीगल रिटेनरशिप दे रहा हूँ किसी को, या फिर आप कोई सर्विसेज दे रहे थे, मान लीजिए कि आप वेब सर्विसेज दे रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर सर्विसेज दे रहे हैं किसी को, या फिर आप किसी से रिटेन्ड हैं, मान लीजिए 5 टन का स्टील दे रहे हैं आप किसी को, या फिर एक महीने आपने 5 टन दिया, दूसरे महीने आपने 10 टन दिया, तीसरे महीने आपने 15 टन दिया। तो अब जो है, अब आपका जो पेमेंट्स है 5 टन का और 10 टन का, 15 टन का, उस हिसाब से मैं ये सोच सकता हूं कि सामने वाली पार्टी ने 1 टन का कितना आपको पे किया है। दैट इज सिंपल मैथमेटिक्स। सो आपको इस वे में जाना पड़ेगा टर्म्स को प्रूव करने के लिए एडजुडिकेटरी अथॉरिटी के पास, कि अगर मान लीजिए इन्होंने 5 टन का मुझको 25 लाख दिए थे, तो ही हैज अग्रीड अपॉन कि मैं 1 टन का 5 लाख रुपए दूंगा। तो अब आप मान लीजिए कि किसी महीने उसको 25 टन दिया था और उसने कहा कि हमने कोई अग्री नहीं किया है 1 टन के प्राइस पे, और हमने तो मान लीजिए कि बहुत लेसर अमाउंट उसने कहा कि इतने पे ही अग्री किया था, तो आप अपने पास ट्रांजैक्शंस दिखा सकते हैं जो कंटिन्यूअस है, ये बोलने के लिए कि देखिए ये सारे पास में हमारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं। तो अगर हम लोग ये ट्रांजैक्शंस से देखें तो हम लोग ये बता सकते हैं कि 1 टन का कितना पे हम लोग अग्री किए थे। सो इन दैट मैनर यू कैन प्रूफ, बट देन इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि इतना सिंपल जैसे मैंने एग्जांपल दिया उतना सिंपल होता नहीं है, राइट। सर्कमस्टांसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, जब डिस्प्यूट हो जाते हैं तो फैक्ट्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो इतना ज्यादा सिंपल होता नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका रिकॉर्डेड राइटिंग्स टर्म्स जो है वो गोज अ लॉन्ग वे टू 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 इनेबल यू टू एस्टैब्लिश योर क्लेम, राइट। तो आपका एविडेंस नहीं होने से, मटेरियल ऑन रिकॉर्ड नहीं होने से आप डिफॉल्ट प्रूव नहीं कर पाते, ब्रीच प्रूफ नहीं कर पाते, और कॉन्सिक्वेंटली आप क्लेम नहीं कर पाते अपने लॉसेस जो आप करना चाहते थे, राइट। द थर्ड इज क्लेम्स बीइंग अंडरवैल्यूड। वो सेम चीज है जो कि मैंने आपको बता रहा था कि अगर मान लीजिए कि कैश ट्रांजैक्शंस आपने किया और आपने उसको टैक्स बचाने के लिए आपने 10 लाख के ट्रांजैक्शंस को 5 लाख का ही दिखाया, आपने 5 लाख पे ही टैक्स भरा, तो अब आप अगर कोर्ट जाएंगे तो आप 5 लाख के ही ट्रांजैक्शंस को कोर्ट ले जा सकते हैं। आप वो अदर इलीगल ट्रांजैक्शन जो आपने किया था टैक्स इवेजन में 5 लाख का, आप वो नहीं ले जा सकते। तो आपका यहाँ पे क्लेम अंडर वैल्यू हो गया, आप 5 लाख पे ही जा पाएंगे, राइट। अगर मान लीजिए आपने 5 लाख का कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया था राइटिंग में, तो देन यू वोंट बी एबल टू प्रूव इट, राइट। तो ये एक दिक्कत है कि आपका क्लेम्स अंडर वैल्यूड हो जाते हैं, आपके क्लेम्स अंडर वैल्यूड हो जाते हैं। तो बी माइंडफुल ऑफ दिस। और द सेकेंड वन इज लिक्विडिटी क्रंच इन दी ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। अब आपके कोई भी ऑपरेशंस के लिए, फॉर एनी ऑपरेशंस टू गो राइट, यू हैव टू हैव लिक्विडिटी। बिजनेस में जितनी लिक्विडिटी होती है उतना ही ऑपरेशन सीमलेस होता है, ये तो सबको पता है। आई एम एन एडवोकेट, सो आई बिलीव दैट मुझसे बेटर आप लोग जानते होंगे, क्योंकि आप लोगों को प्रोडक्ट्स के लिए रॉ मटेरियल सोर्स करने पड़ते हैं और सर्विसेज के लिए आपको अदर एम्प्लॉई सोर्स करने पड़ते हैं। तो लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीट एनी बिजनेस, राइट। तो अगर आपके पास लिक्विडिटी नहीं होगी तो आपका ऑपरेशंस डिसरप्ट होगा, आप बिजनेसेस डिसरप्ट होंगे आपके, तो ये सारी दिक्कतें आएंगी आपको। और द नेक्स्ट वन इज नॉट एबल टू रियलाइज द एक्चुअल अमाउंट, इज अगेन सेम थिंग दैट आई स्टेटेड अर्लियर, कि आपको एक्चुअल अमाउंट नहीं मिल पाएगा जो आपने रिकॉर्ड किया है, जितने पे आप रिकॉर्ड करके गए थे, आप वही चीज ले जा पाएंगे एडजुडिकेटरी अथॉरिटी के पास। और आप अदर वेस्ट अदर चीजें जो आपने अंडर टेबल लेट्स से जो आपने किया था रिकॉर्ड नहीं करके, वो आप उनके सामने नहीं ले जा पाएंगे, बिकॉज देन इट इज इन द फर्दरेंस ऑफ टैक्स इवेजन, राइट। तो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी मिनिमल हो जाएगी, आपका लिक्विडिटी क्रंच में अगर आप ऑपरेशंस करेंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी मिनिमल रहेगी, आप एक एक पेनी को इधर उधर इस्तेमाल करेंगे, यू वुडंट हैव दैट प्रॉफिटेबिलिटी। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी है भी आपका पेपर में तो यू वुडंट रियलाइज इट इन दैट मैनर, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो जाती है।
और ये सब होता है नॉट प्रॉपर एंड रेलेवेंट प्रोफेशनल कंसल्टेशन से। अगर आपका मान लीजिए कि आप किसी टैक्सेशन उसमें फंसे हैं, आपको पता नहीं है कि कैसे टैक्सेशन का इश्यूज मुझको डील करना चाहिए, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू गो एंड कंसल्ट एन एक्सपर्ट हु नोज अबाउट टैक्स, राइट। आप खुद से, अब उसमें बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब सारा चीज खत्म हो जाती है, व्हेन द डैमेज इज बियॉन्ड डैमेज कंट्रोल, देन पीपल कम टू द एक्सपर्ट्स। जब आपने उनको बोल दिया है, आपको मैं बता सकता हूँ एग्जाम्पल में कि ये कैसे होता है। जैसे कि एक बार एक क्लाइंट आए थे हमारे पास, जिनका एक डिस्प्यूट था, एमएसएमई थे वो, और उनका एक गवर्नमेंट पीएसयू से डिस्प्यूट था। अब उन्होंने कम्युनिकेशन में ही उनको एक बार लिख दिया कि हम जो है किसी और से सामान लेते हैं और फैक्टर करते हैं प्रॉफिट और उसको सामने बेच देते हैं। अब नाउ दिस जेंटलमैन डजंट नो दैट इट, when he says this, he's saying that I'm a trader, right? He had a registration of a manufacturer, but what he did was he communicated this to the PSU saying कि I have bought this steel from this vendor, I have factored a profit of 10% to myself, and then I have resupplied it to you. Now this gentleman didn't know that he is claiming himself to be a trader in this transaction, and now just because of this we lost that entire dispute because the MSME held us to be trader, not manufacturer. So आप प्लीज हमेशा माइंडफुल रहिए कि आप जो भी चीजें लिख रहे हैं सामने वाले को, उसका डेट्रीमेंटल इफेक्ट है। आप इतने माइंडफुल नहीं हो सकते डिस्प्यूट्स में, क्योंकि आपका एक्सपर्टीज एक अलग चीज पे है। आपका एक्सपर्टीज है कि कैसे मैं कस्टमर्स लाऊं, कैसे उनको मैं अपना सामान बेचूं या सर्विसेज दूं। आप डिस्प्यूट्स के इंट्रिकेसीज को डील नहीं कर सकते, और आप जितना सोच सकते हैं, मान लीजिए कि आप सारी चीजें नहीं सोच सकते, तो ऑपोजिट पार्टी के लीगल काउंसिल, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज सोच रहे हैं, राइट। तो इसीलिए ऑलवेज इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू गो एंड कंसल्ट एन एक्सपर्ट व्हेनेवर यू आर एंटरिंग एनी डिस्प्यूट और यू आर डीलिंग विद अ डिस्प्यूट। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग लिमिटेशन भूल जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि मैं कब तक सामने वाले से पैसा ले सकता हूँ। अगर मान लीजिए कि 2018 में उनका पेमेंट टर्म खत्म हो रहा था, तो वो 2024 में आएंगे आपके पास ये कह के हमारा 2018 का पेमेंट अभी तक नहीं आया। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप किसी एक्सपर्ट से मिलते पहले, तो आपको ये पता होता कि 3 साल का लिमिटेशन पीरियड होता है। जिस दिन से आपका पेमेंट टर्म खत्म हुआ, जिस दिन से आपका पेमेंट ड्यू एंड पेएबल होता है, उसके 3 इयर्स तक ही आप कोर्ट में जा सकते हैं लिमिटेशन। उसके बाद जो होता है वो बार्ड बाई लिमिटेशन हो जाता है आपका क्लेम। आपका कोर्ट जो है आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि लिमिटेशन से बार्ड है वो। तो आपका क्लेम जो है वो बार्ड हो जाता है, आप वो क्लेम आगे नहीं ले जा सकते, दैट इज बार्ड बाई लिमिटेशन। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो है वो सब माइंडफुल होनी चाहिए हम लोगों को, और ये सब माइंडफुल हम लोग कब हो पाएंगे, जब हम कंसल्ट करेंगे एक्सपर्ट्स से। सो नाउ विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सॉल्यूशंस एंड वे फॉरवर्ड टू ओवरकम दिस चैलेंजेस। अब हम लोग 2 सॉल्यूशंस की बात हमने पहले की थी, इंटरनल सॉल्यूशन एंड एक्सटर्नल सॉल्यूशन। इंटरनल सॉल्यूशन जो भी मैंने आपको बताया कि रिकॉर्ड करने होते हैं ट्रांजैक्शंस, आपको कोरेस्पॉन्डेंसेस करने होंगे, अगर आप लॉस हो रहा है आपको, तो आपको बताने होंगे कि ये सारे लॉसेस हुए हैं। आपको उन सब का प्रूफ भी रखना होगा कि आपने ये सारे एक्सपेंसेस इनकर किए जस्ट बिकॉज कि ये डिलेड पेमेंट हुआ था आपका, आपके ये सारे लॉसेस हुए। तो वो सारे लॉसेस आप प्रूफ कर पाए आगे, तो आप उसका डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड अच्छे से रखें, ताकि जब भी ये चीज आपको प्रूफ या क्लेम स्टैब्लिश करना हो, तो ये सारी चीजें आप जब एडजुडिकेटरी अथॉरिटी को देंगे, तो इट बिकम्स रियली इजी फॉर देम टू डिटरमाइन द क्लेम अमाउंट और डिटरमाइन द ब्रीच, right? And if they have determined the breach, if they have determined the losses that you have incurred due to that breach, then there is nothing in law which would stop you from getting awarded that amount that you are asking for, right? So इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपका जितना अच्छा डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्डेड रहेगा हर कुछ ट्रांजैक्शंस एंड टर्म्स, उतना ही अच्छा आप अपने डिस्प्यूट्स को डील कर पाएंगे, नेविगेट कर पाएंगे, राइट? और अगर आपका ये सारी चीजें अच्छे से हैं, तो अब ऑपोजिट पार्टी को भी पता होता है कि इफ ऑल ऑफ दिस इज रिकॉर्डेड, देन दे हैव टू पे। अगर वो आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, कभी ना कभी उनको करना है, क्योंकि टर्म्स जो है रिकॉर्डेड है। उनको पता है कि कोई भी एडजुडिकेटरी अथॉरिटी देखेगा तो हमें ब्रीच, हमने जो ब्रीच किया है वो अपहेल्ड कर देगा। तो ये सारी चीजें होती भी नहीं है, ये बहुत प्रिवेंट करती हैं ये सारी चीजें। और जब ये सारी चीजें नहीं होती हैं, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि दे कैन इजिली गेट अवे विदाउट पेइंग,
और नॉट पेइंग द फुल अमाउंट, राइट? तो ये सारी चीजें जब आप करेंगे तो सामने पार्टी की तरफ से भी रिस्ट्रेंट होता है कि आपके साथ वो सब कर पाए, डिले कर पाए आपका पेमेंट, और अगर वो डिले करते भी हैं तो आपके पास ये अश्योरेंस रहेगा कि व्हेनेवर यू अप्रोच एन एडजुडिकेटरी अथॉरिटी, आपका जो डिटर्मिनेशन होगा वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत लॉजिकल होगा, बहुत टर्म्स के अकॉर्डिंग होगा, जो आपने रिकॉर्ड किया है ट्रांजैक्शन उसके अकॉर्डिंग होगा। तो यही है इसमें दो पॉइंट जो मैं आपको नटशेल में बता दिया हूं कि आपको फॉलो अप करना पड़ता है, इंटरेस्ट कितना लग रहा है आपका वो बताना पड़ेगा आपको। ये सारी चीजें जब आप सामने वाले को बता के रखेंगे पहले से फर्स्ट हैंड, तो अब वो सामने वाला दूसरे बात पे ये नहीं कह सकता कि मुझे तो ये सब पता ही नहीं थी और ये सब तो कॉन्सिक्वेंसेज मुझको पता नहीं थे, क्योंकि आपने उनको हर टाइम जहां पे आपका वो लॉसेस हो रहा था आपने उनको बताया कि ये लॉसेस हुए हैं हमें, तो ये आपसे मैं रिकवर करूंगा, तो आपने उनको पहले से बताया हुआ है, राइट? तो अब ये सामने से आके आपको ये नहीं बोल सकते कि मैं नहीं दूंगा, राइट? तो ये सारी चीजें गोज अ लॉन्ग वे इन एस्टैब्लिशिंग योर क्लेम। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब आपको मैंने यही बता रहा था, मैं यही बता रहा था आपको कि आपको रेलेवेंट प्रोफेशनल्स क्यों चाहिए, लीगल सेक्रेटोरियल ऑडिट कराना चाहिए अगर आपके प्लांट है, आपके प्रोडक्ट्स हैं, आपके प्लांट में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो बहुत सारे लेबर लॉ कंप्लायंसेस होते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट जो है, सोशल सिक्योरिटी लॉ के कंप्लायंस हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंप्लायंस होते हैं। अगर आपके प्लांट में बॉयलर लगा है तो देयर इज अ बॉयलर एक्ट जिसमें आपको कंप्लायंस देखना होता है बॉयलर्स का। बड़े बड़े मशीन्स जो होते हैं, जो डेंजरस मशीन्स होते हैं, उनके अलग सोशल सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं कि आपको ये सब लेना है। जो आपको प्रोटेक्टिव गियर्स, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सब आपका मैंडेटरी हो जाता है, एवरीथिंग। मतलब कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप जो भी बिजनेसेस करते हो, आप जिस भी इंडस्ट्री स्पेसिफिकेशन में बिजनेस कर रहे हो, तो लॉ जो है आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती। लॉ में कंप्लायंसेस हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो लॉ आपको बताता है कि आप ये सब कंप्लायंस करें, जिसमें सोशल सिक्योरिटी है। अगर आपके पास 10 एम्प्लॉइज हैं तो आपको प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का कंप्लायंस करना होता है। ऑल ऑफ दीज कंप्लायंसेस आर मैंडेटरी इन नेचर। ये आप जब तक किसी रेलेवेंट प्रोफेशनल कंसल्टेंट से मिलके ये सब चीजें स्ट्रीमलाइन नहीं करते हैं अपने बिजनेस में, तो आप अपने बिजनेस को ना ही किसी सामने इन्वेस्टर के पास ले जा पाएंगे, ना ही वीसी के पास ले जा पाएंगे, क्योंकि वो सारे लोग जो हैं, आप जब भी अपने बिजनेस को बड़े वे में देखते हैं, इफ यू विश टू गेट योर बिजनेस ऑन अ लार्जर स्केल, राइट, देन दीज आर द मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स दैट यू हैव टू डू। आप वैसे बिजनेस चला के अपने एक टेरिटरी में लोकल कस्टमर रख के 10-15 साल आराम से चला सकते हैं बिना लीगल कंप्लायंस किए हुए। कोई आ रहा है तो आप उसको ब्राइब कर दे रहे हैं, जैसे कि नॉर्मली चीजें चलती हैं इंडिया में, तो आप वैसे चला सकते हैं, बट देन your business wouldn't be visible at a very larger scale. It wouldn't be supported by any VC. It wouldn't be supported by any investor. Because कोई भी अगर आप में पैसा डाल रहा है, आप पे ट्रस्ट करके रिसोर्सेज दे रहा है, तो उसको कम से कम ये एश्योरेंस चाहिए कि वो सारे टर्म्स जो हैं, उसके जो कंसिडरेशन जो है, जो भी वो आपको दे रहा है उसके बदले उसको क्या मिलेंगे, राइट? तो ये सारी चीजें जब तक स्ट्रीमलाइन नहीं होंगी, तब तक वो रिस्क असेस नहीं कर पाएंगे कि आपके एम्प्लॉइज जो हैं उनका एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट है या नहीं, आपके यहाँ जो काम करते हैं प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है या नहीं, आपका सोशल सिक्योरिटी मेजर्स इन प्लेस है या नहीं, आप पीएफ देते हैं या नहीं, अगर डेली वेज वर्कर्स हैं आपके यहाँ पे तो आप लेबर सेस दे रहे हैं या नहीं। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ये सब ड्यू डिलीजेंस का पार्ट होती है। तो अगर कोई भी आपके कंपनी में इंटरेस्टेड है, अक्वायर करना चाहता है, कोलैबोरेट करना चाहता है, जॉइंट वेंचर करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, तो द फर्स्ट थिंग दैट दे लुक इनटू इज ऑल ऑफ दिस, क्योंकि इससे रिस्क असेसमेंट होता है एंड बहुत सारी चीजें होती हैं कि आगे उनका जो कोलैबोरेशन है या फिर जो आपके साथ अरेंजमेंट है वो कितना आगे जा पाएगा, उन पे रिस्क इंटेल कितना हो रहा है और आपका लीगल कंप्लायंसेस कितना है। तो ये सारी चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी होंगी आप जब ऐसे रिलेवेंट कंसल्टेंट्स से मिलते हैं, जैसे कि उद्यमिता हेल्पलाइन के साथ अगर आप जुड़ेंगे, तो दे हैंड होल्ड यू इन letting you know the benefits, the schemes, the policies of MSMEs. They conduct these webinars like this, uh,
जहाँ पे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में, आपको वीसी के बारे में, एंजल फंडिंग के बारे में, सब के बारे में बताया जाता है। तो दीज गाइज आर एक्सपर्ट्स व्हेन इट कम्स टू एमएसएमईज, अ होलिस्टिक अप्रोच टू एमएसएमईज। तो ये लोग हम लोग जैसे एक्सपर्ट्स से मिलके आपको नॉलेज डिसमिनेट कराते हैं as far as the legal compliances go, as far as the delayed payment recovery goes. सिमिलरली ये आपसे अदर एक्सपर्ट्स को लेके सीए सीएस को लेके आते हैं, आपसे टैक्सेशन के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता होंगी तो आप अपना बिजनेस उतने अच्छे से नेविगेट नहीं कर पाएंगे। इफ यू वुडंट बी इन्फॉर्म्ड, यू वुडंट मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट? तो अगर आप जितना इन्फॉर्म्ड रहेंगे, आप उतना इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे, आपको इतनी ज्यादा पता रहेंगे कि आपके बिजनेसेस में क्या हो सकते हैं क्या नहीं। अब जैसे कि आपको ये सारी चीजें सिंपल वेज में समझे जा सकते हैं। अगर आपको अपने राइट्स और ड्यूटीज के बारे में नहीं पता, अगर आपको अपने नॉर्मल राइट्स के बारे में नहीं पता कि लॉ आपको क्या राइट्स देता है, क्या आपकी ड्यूटीज हैं, संविधान आपको क्या अधिकार देता है, तो कोई भी आके आपको शोषित कर सकता है, राइट? लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको पता है कि आपके अधिकार क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है, तो अब कोई भी आके आपको ऐसे ही शोषित नहीं कर सकता। आप इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे, आप बहुत ज्यादा सशक्त होंगे। तो आप जितना इन्फॉर्म्ड होते हैं, आपको जितना चीजों के बारे में पता होता है, आप उतने ही सशक्त होते हैं, आप उतने ही इनकरेज्ड होते हैं, आप उतने ही अच्छे से वो सारी चीजें डील कर पाते हैं। सो इन अ नटशेल ये यही है कि प्लीज गो एंड सीक आउट कंसल्टेशंस व्हिच आर रेलेवेंट टू योर इंडस्ट्री स्पेसिफिक ऑपरेशंस। आप फूड सेफ्टी सिक्योरिटी से डील कर रहे हैं तो आप फूड सेफ्टी ऑफिसर्स से जाके मिल सकते हैं, लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं। और ये सारी चीजें आपको माइंडफुल रहनी पड़ेंगी कि ये सारी चीजें लॉ मैंडेट करती है। इट इज नॉट समथिंग कि आप उठे और अभी लेवल बना दिया और आप बेचने लग गए। आप शुरू कर सकते हैं, बट देन व्हेन इट कम्स into the notice of the regulatory authorities, there is a possibility that they would fine you, they would impose a penalty, and at that point of time you cannot get away from that penalty. You'll have to pay those penalty। और बहुत सारे situations में imprisonment भी होता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें अगर आप इग्नोर करेंगे और ये डेट्रीमेंट पे आपके काम कर जाती है तो आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है, और इन एक्सेप्शनल केसेस आपको imprisonment भी हो सकता है। So I'll go to the next slide now। एक्सटर्नल सॉल्यूशन क्या है? रिकोर्स फ्रॉम एमएससीएफसी, रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। तो एक्सटर्नल, हम लोग इंटरनल सॉल्यूशंस की बात कर लिए। अब हम सिर्फ और सिर्फ डिलेड पेमेंट के रिकवरी की बात करेंगे लॉ में, कि कौन कौन से लॉ में हम जा सकते हैं, और जब डिलेड पेमेंट हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं। जब अब हमने सोच लिया है कि दी बायर इज नॉट गोना पे अस by making request, because we have made innumerable requests to the buyer, and now we have decided that we have to go before any alternate, we have to opt for any alternate dispute resolution, or we have to approach a court for litigation। तब हम लोग एक्सटर्नल सॉल्यूशन पे आते हैं। एक्सटर्नल सॉल्यूशन वो है कि जब आपका डिलेड पेमेंट का इश्यूज अराइज हो गया है, तब हम उसको कैसे डील कर सकते हैं। तो अब सबसे पहला है एमएसएमई एक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में, हम लोग बात करेंगे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी के बारे में, हम लोग आर्बिट्रेशन के बारे में बात करेंगे, और लास्टली हम लोग सीपीसी के बारे में बात करेंगे। सो द फर्स्ट इज एमएसएमई। अब सेक्शन 7 में क्लासिफिकेशन आता है, जस्ट अ सेकेंड। या सो हमें इसको थोड़ा सा वो करना होगा। हमने आपको अब एक्सटर्नल सॉल्यूशंस पे जब हम आ गए हैं तो अब हम आपको सिर्फ लॉ के बारे में बताएंगे, और हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीजें अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस डिसाइड किए हैं इन रिलेशन टू एमएसएमईज। आज का जो हमारा वेबिनार है वो फोकस्ड रहेगा उस पर, क्योंकि हमारे बहुत सारे वेबिनार्स हैं जिसमें हमने सेम चीजों के बारे में बात करी है। तो अब अगर हम इस पे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो वो है हमारा चैप्टर जो सेक्शन 15 से शुरू होता है और सेक्शन 24 तक जाता है। इससे पहले जो है ये सब नॉर्मल एमएसएमई के बेनिफिट्स के लिए है कि मेजर्स फॉर प्रमोशन और डेवलपमेंट क्या होगी। गवर्नमेंट इनके प्रमोशन और डेवलपमेंट के लिए मेजर्स ले सकती है, क्रेडिट फैसिलिटी दे सकती है। जैसे बैंकिंग में आप जाएंगे तो एमएसएमईज के लिए एक अलग क्रेडिट फैसिलिटीज होती है, तो ये सारे सेक्शंस उनको इनेबल करते हैं, राइट। प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस पॉलिसी आपने देखी होगी, गवर्नमेंट टेंडर्स में एमएसएमईज को एक प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस पॉलिसी दी जाती है कि अगर एमएसएमई लोएस्ट बिडर नहीं भी है और एक परसेंटेज के अंदर है
तो अगर कोई और लोवेस्ट बिडर भी होता है तो द प्रेफरेंस इज गिवन टू एमएसएमई। तो ये सेक्शन 11 उसको सपोर्ट करता है। सेक्शन 12 फंड्स के बारे में बोलता है कि फंड्स कैसे कैसे मिलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को दे सकती है, स्टेट गवर्नमेंट फिर दे सकती है आपको। फिर 13 है ग्रांट, ग्रांट क्या दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फंड्स और ग्रांट्स में एक डिफरेंस ये है कि ग्रांट जो होता है वो जनरली होता है सपोर्ट के लिए, उसमें कंसिडरेशन नहीं देते आप गवर्नमेंट को। जैसे कि अगर आप में कोई 10 लाख इन्वेस्ट कर रहा है तो इन्वेस्टर जनरली आपसे डिबेंचर लेते हैं या शेयर लेते हैं या फिर पार्टनरशिप लेंगे। लेकिन जो ग्रांट होता है वो बस जस्ट ग्रांट होता है, वो आपको बस सपोर्ट के लिए होता है, तो वो ग्रांट्स की बात करते हैं। 14 एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स है। ये सारी चीजें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शंस है, जो आपको दिखेंगे कि इनका सपोर्ट जो है स्कीम्स में इनका यूज करके स्कीम्स लाई है गवर्नमेंट ने एमएसएमईज के लिए। सो अब जो है हम सेक्शन 15 पे आते हैं, लाइबिलिटी ऑफ बायर टू मेक पेमेंट। अब इसमें सबसे पहले जो है बायर और सप्लायर की बात की गई है। अब सप्लायर और बायर का डेफिनेशन जब आप पढ़ेंगे एमएसएमई में, तो सप्लायर जो है एमएसएमई में, सप्लायर को बहुत एक्सटेंसिवली डिफाइन किया है इन्होंने। सप्लायर वो है जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, बस आपको सप्लाई करने की जरूरत नहीं है टू बीइंग अ सप्लायर एज पर एमएसएमई एक्ट। अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड एंटरप्राइजेस हैं तो आप सप्लायर के डेफिनेशन में आ जाते हैं। और बायर वो है जो आपसे कोई या तो सर्विसेज लेता है या तो आपसे प्रोडक्ट लेता है। तो सेक्शन 15 ये बोलता है कि अगर किसी सप्लायर ने किसी बायर को कोई सर्विसेज दिए हैं, कोई प्रोडक्ट्स दिया है, तो बायर की लायबिलिटी होती है कि उसको पेमेंट करे, राइट, और 45 डेज के अंदर करे। अब सेक्शन 15 के बाद सेक्शन 16 आता है, डेट फ्रॉम विच एंड रेट एट विच इंटरेस्ट इज पेएबल। तो जैसे कि मैंने बोला कि 45 डेज का टाइम लिमिट है, तो ऑन फ्रॉम द 46 डेट एंड 3 times the interest rate notified by the RBI for MSMEs, the interest rate is payable. तो जब मैं ये बोल रहा हूं कि डेट फ्रॉम विच एंड रेट एट विच इंटरेस्ट इज पेएबल, तो 46 डेट से इंटरेस्ट पेएबल होगा, और इंटरेस्ट कितना पेएबल होगा? 3 times the notified bank rates. The notified bank rates, the last I checked, was 6.25, तो it becomes around 19.25 compounded annually. तो compounded annually जो है, तो 19.25 जो है वो आपका परसेंट कंपाउंडेड एनुअली के बेसिस पे आप इंटरेस्ट उसको जोड़ सकते हैं। महीने का अगर आपको जोड़ना है तो आप उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको महीने का मिल जाएगा, राइट। तो आप उसको कंपाउंडेड जोड़ेंगे, राइट। कंपाउंडेड एनुअली है, ये हमेशा ध्यान रखिए। इसीलिए आपको महीने का जब मैं बताया तो आपको बोला कि मैंने 12 से डिवाइड कर सकते हैं आप, तो आप महीने का भी आप बता सकते हैं कि इतना कंपाउंडेड ऑन अ मंथली रेस्ट होगा, राइट। और उसके बाद है रेफरेंस टू एमएससीएफसी। अब ये बताता है कि अगर कोई सा भी किसी का भी सप्लायर का अगर 45 डेज से ज्यादा से पेमेंट नहीं आया है किसी बायर से, तो वो एमएसएमई के सेक्शन 18 में जाके रेफरेंस फाइल कर सकता है। अब रेफरेंस फाइल करने के लिए आप ऑनलाइन जा सकते हैं। ऑनलाइन एक वो है पोर्टल है जहां पे आपको डिटेल्स भरने होते हैं अपने और बायर के, आपको बाकी सारा डिटेल देना होता है, परचेज ऑर्डर का, इनवॉइसेस का, कितना आपका डेट ड्यू है, और कब आपने परचेज ऑर्डर दिया था, कब आपने इनवॉइस दिया था, और ये सब आप डाल के उसको रेफरेंस मेक करते हैं। फिर जो है एमएसएमई क्या करती है, एमएसएमई आपके सारे जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में एमएसएमई ये करेगी कि वो देखेगी कि आप माइक्रो या स्मॉल ही तो है या मीडियम तो नहीं है। अगर आपका माइक्रो मतलब कि वो टर्नओवर, और आपका वो देखेगी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि एमएसएमईडी एक्ट जो है वो माइक्रो और स्मॉल को ही अलाउ करती है एमएससीएफसी रेफरेंस मेक करने के लिए। तो ये डिटरमाइन करना होता है उनको कि आप किस क्लासिफिकेशन में आते हैं, आप माइक्रो में आते हैं, स्मॉल में आते हैं। और सेकंड वो चीज ये डिटरमाइन करते हैं कि आपने कहीं और सेम चीज के लिए तो केस नहीं किया है। अगर ये दोनों चीज वो डिटरमाइन करके उनके लिए फिट एंड फाइन है, अगर आपने कहीं और केस नहीं किया है, आप माइक्रो या स्मॉल में हैं, तो उनका बस एक ही काम है कि वो आपका रेफरेंस को आगे बढ़ा दे। फिर 19 जो है ये रेलेवेंट है, एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड डिक्री अवॉर्ड एंड ऑर्डर। अगर मान लीजिए पहले कंसिलिएशन होता है, उसके बाद आर्बिट्रेशन होता है। अगर आपने सेक्शन 18 में रेफरेंस एप्लीकेशन दिया
और आपका प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद एमएसएमई ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो आप दोनों को पहले बुलाया जाएगा बायर सप्लायर को कंसिलिएट करने के लिए, जहां आप दोनों बैठेंगे, म्यूचुअल रिजोल्यूशन के बारे में, म्यूचुअल रिजोल्यूशन का वे एक्सप्लोर करेंगे। आप लोग देखेंगे कि आप लोग सेटल कर सकते हैं कि नहीं। एंड इफ यू गाइज आर नॉट एबल टू सेटल, इफ द पार्टीज आर नॉट एबल टू सेटल, देन द रेफरेंस गोज नॉर्मली एंड ऑटोमेटिकली टू आर्बिट्रेशन। अब फिर वो आर्बिट्रेशन में जब जाता है, देन एन इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर इज अपॉइंटेड and the claimant and the defendant. If you are a supplier, you become a claimant. You can raise your claim. The supplier, if he thinks that he has a counterclaim, can raise a counterclaim, or if he doesn't have a counterclaim, can give a statement of defense that why he doesn't think that he has to pay, and you will, in your statement of claim, give your claim and the reasons that why the buyer should pay you this amount, right? And after determining the statement of claim and the defense from both the parties, and appreciating the evidences in which it will include the purchase orders, invoices, the communication between the parties, the arbitrator would come to a determination, would pass an award, right? If it passes an award and the opposite party wishes to challenge it now the section 19 comes into picture. Section 19 says ki if the other party has an award against them, right? And you being a supplier has an award, right? That you have to obtain, let's say 50 lakh rupees from supplier, from the buyer, right? And an award is already passed, and now the opposite party wishes to challenge that award, तो वो कर सकता है लॉ में, he is allowed to do so. The only requirement is कि for his appeal to be heard, he will have to deposit 75% of the awarded amount. सो मैं एक बार आपको बस ब्रीफली टच कर देता हूँ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी पे, एंड देन हम लोग क्वेश्चंस एंड आंसर्स लेने लग जाएंगे। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी क्या है, आपको मैंने एमएसएमईज के सारे वो बता दिए हैं। देयर आर सम सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस दैट यू शुड बी माइंडफुल अबाउट। सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये कहा है कि पहले शिल्पी इंडस्ट्रीज थी, शिल्पी इंडस्ट्रीज में ये कहा गया था कि अगर आपने आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जिस दिन का है और आपने उसके बाद किसी को इनवॉइसेस रेज किए हैं, तभी आप एमएससीएफसी आ सकते हैं। उसके पहले के इनवॉइसेस जो भी हैं, आपके रजिस्ट्रेशन के पहले के इनवॉइसेस जो भी हैं, आप उसको एमएससीएफसी में नहीं लेके आ सकते। बट सुप्रीम कोर्ट के अभी एक रीसेंट जजमेंट ने इसको एक लार्जर बेंच को रेफर कर दिया है, और उसमें यह कहा गया था कि शिल्पी इंडस्ट्रीज ने ऐसा कभी नहीं कहा। शिल्पी इंडस्ट्रीज में ये जो सारी चीजें डिटरमाइन की गई थी, वो एक पॉइंट ऑफ लॉ के बारे में नहीं कहा गया था, वो उस स्पेसिफिक केस के बारे में कहा गया था। यहाँ पे जो 2 जजेस की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने ये क्लैरिफाई किया है कि उनके हिसाब से जो डेफिनेशन है वो सबके लिए होना चाहिए, इवन फॉर द एंटरप्राइजेस हु आर नॉट रजिस्टर्ड एज एमएसएमई, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है और वो लोग भी ये कर सकते हैं। बट ये अभी तक ये जजमेंट अप्लाई नहीं कर रहा है, बिकॉज इट इज स्टिल पेंडिंग बिफोर अ लार्जर बेंच। तो इसको रेफर कर दिया गया है लार्जर बेंच के पास। तो अगर आपका कोई एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के वजह से आपको कोई अलाउ नहीं कर रहा है अभी आपका रेफरेंस मेक करने के लिए, रेफरेंस फाइल करने के लिए, तब आप कोर्ट जा सकते हैं रिट पिटिशन में ये बोल के कि ये अलाउड ही नहीं है, एंड इफ ये कोई डिसाइड करेगा तो ये आर्बिट्रेटर ही डिसाइड करेगा, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लैरिफाई कर दिया है कि इट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ लॉ। तो अब अगर आपको वो रेफरेंस एप्लीकेशन नहीं करने दे रहे हैं, तब आप उस स्टेट के हाई कोर्ट जाइए और बोलिए कि ये अलाउड ही नहीं है, ऑथराइज ही नहीं है टू स्टॉप मी फ्रॉम मेकिंग अ रेफरेंस एप्लीकेशन। अगर आर्बिट्रेटर को लगेगा कि हाँ मेरा रजिस्ट्रेशन के बाद का ही इनवॉइसेस उसमें इंक्लूड होना चाहिए, तो वो आर्बिट्रेटर को डिसाइड करने के लिए है, नॉट फॉर दी एमएसएमई गाइज हु आर डूइंग प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वुड डिसाइड। तो सबसे पहला चीज मैं ये बताना चाहता था। सेकंड चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने दूसरे डिसीजन में ये कहा है कि लिमिटेशन एक्ट जो है वो एमएसएमई पे लगती है, बट ओनली आर्बिट्रेशन पे लगती है, कंसिलिएशन पे नहीं। अगर मान लीजिए आपका 2018-2017 का भी कोई क्लेम है और आप उसको लिमिटेशन की वजह से नहीं लेके जा रहे हैं, क्योंकि अब आपको लगता है कि ये लिमिटेशन से बार्ड है, तो आप कम से कम उसको रेफरेंस में फाइल करिए। आप उसको कम से कम कंसिलिएट कर सकते हैं ऑपोजिट पार्टी के साथ बैठ के। तो कम से कम एक पॉसिबिलिटी अभी भी है कि कंसिलिएशन में अगर आपने उनसे सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन करा लिया, कोई एक एक्नॉलेजमेंट ले लिया, कोई एक अग्रीमेंट ले लिया कि हाँ अभी तो आप मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं आपको 6 महीने में दूंगा, 1 साल में दूंगा, तो कम से कम आपका जो डेट है वो रिवाइव कर जाएगा, राइट, जो कि अभी बार्ड बाय लिमिटेशन है।
तो सेकेंड चीज आपको माइंडफुल ये रहना है कि अगर आपका लिमिटेशन से बार्ड भी है तो नाउ यू कैन डू कंसिलिएशन एज पर लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कंसिलिएशन एडजुडिकेटरी प्रोसेस नहीं होता, तो इसमें लिमिटेशन का कोई इश्यूज नहीं है। और कंसिलिएशन एमएसएमई डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में पहले मैंडेटरी है। अगर कंसिलिएशन आप नहीं कर रहे हैं, सीधा आर्बिट्रेशन में जा रहे हैं, तो वो पूरा जो आपका डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस है उसको सेट असाइड कर देती है कोर्ट। तो आप पहले दिमाग में ये बिठा लीजिए कि कंसिलिएशन करना ही होता है। अगर मैं एमएसएमई में गया तो मुझे कंसिलिएशन करना ही है, और जब आप कंसिलिएशन कर रहे हैं, आपको मैंडेटरी है कंसिलिएशन करना, तो देन लिमिटेशन से बार्ड है नहीं है, इट इज इररिलेवेंट। इट इज ओनली रेलेवेंट व्हेन इट गोज इनटू आर्बिट्रेशन। अगर आपको आर्बिट्रेशन में आपको पता है कि इट इज barred by limitation, then you do not go to arbitration. आप कंसिलिएशन करो और वहीं से आप बोलो नॉट वांट टू टेक इट फर्दर, राइट। और कंसिलिएशन में आपके पास पॉसिबिलिटी अभी भी है कि इफ यू आर एबल टू मेक द ऑपोजिट पार्टी अग्री कि आप सेटलमेंट अग्रीमेंट पे साइन कर दो, आप 1 साल नहीं, आप 2 साल दो, तो आपका डेट जो है कम से कम फिर से रिवाइव हो जाएगा, राइट। तो ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। और जो दूसरी चीज है वो मैं आपको एक बार इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के बारे में बता दूंगा। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर होते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी में, जो भी सर्विसेज देते हैं या फिर प्रोडक्ट्स देते हैं, राइट। तो अगर आपका 1 करोड़ के ऊपर किसी से ड्यू है तभी आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी को ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपका 1 करोड़ से ऊपर ड्यू है किसी के ऊपर और वो कंपनी या एलएलपी है, तभी आप आईबीसी में जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी होंगी कि सामने वाला कंपनी या एलएलपी हो और आपका जो डेट है वो 1 करोड़ के ऊपर हो, और जो डेट है आपका 1 करोड़ के जो ऊपर डेट में बता रहा हूं वो डिस्प्यूटेड नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपके ट्रांजैक्शन से एकदम दिखता है, परचेज ऑर्डर में दिख रहा है कि आपने 1 करोड़ रुपए का एस्टिमेट दिया है और फिर आपने वो काम किया और आपने 1 करोड़ रुपए का इनवॉइस दिया है और वो पेमेंट नहीं हो रही है, तो देन इट इज नॉट डिस्प्यूटेड। डिस्प्यूटेड मतलब कि मैंने आपको 1 करोड़ रुपए का इनवॉइस भेजा और वहां से तुरंत ऑपोजिट पार्टी का ये आ गया कम्युनिकेशन कि 1 करोड़ रुपए तो बनते ही नहीं है, मेरे हिसाब से 75 लाख रुपए बनते हैं। तो जब तक कि मैं इंसॉल्वेंसी का नोटिस ना भेजूं आपको और उससे पहले कोई डिस्प्यूट रेज कर दिया है ऑपोजिट पार्टी ने, तो उसको डिस्प्यूटेड कहते हैं। और तब तक कोई डिस्प्यूट नहीं रेज हुआ है ऑपोजिट पार्टी का, तो वो डिस्प्यूटेड पेमेंट में नहीं आता है। तो अगर आपका डिस्प्यूटेड नहीं है 1 करोड़ रुपए, तो आप सीधा एनसीएलटी जा सकते हैं। एनसीएलटी क्या करती है, ऑपोजिट पार्टी को एक नोटिस देती है, वो बोलती है कि अगर आप इनका 1 करोड़ रुपए क्लियर करना है तो करिए, नहीं तो मैं आपकी कंपनी जो है इंसॉल्वेंसी में भेज दूंगा, उसका दिवालिया कर दूंगा। तो जब वो दिवालिया होती है तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से वो कंपनी छीन ली जाती है। फिर आपके जो क्लेमेंट्स हैं, आपके जैसे जितने भी सारे क्लेमेंट्स होंगे, उन सबका क्लेम्स जो होगा, एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होता है, आईबीबीआई जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है इंडिया में, प्रोफेशनल्स को मैनेज करती है। वो सीए जैसे ही होते हैं, लॉयर्स होते हैं ये लोग। वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बदले एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को बिठा देती है वहां पे। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल सारे क्लेमेंट से क्लेम मंगाता है, कंपनी के सारे रिसीवेबल्स देखता है, कंपनी के एसेट्स देखता है, और कंपनी को सामने एज अ गोइंग कंसर्न अगर कोई दूसरा कंपनी खरीद के इसको चलाना चाहे तो वो उसको मौका देती है। और दूसरी कंपनी को ये बताना होता है कि वो कैसे इसका जो डेट है वो रिजॉल्व कराएगा। तो अगर मान लीजिए 100 करोड़ का डेट आता है किसी कंपनी का, और किसी कंपनी ने बोला कि मैं 80 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूं, मैं इतने इतना 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 सारे क्लेमेंट्स को 20 करोड़ रुपए जो है वो सबका हेयर कट कर लूंगा परसेंटेज के हिसाब से। अगर मान लीजिए कि किसी को 10 लेना था, किसी को 15 लेना था, किसी को 5 लेना था, तो 20 करोड़ का जो लॉस है वो सब में परसेंटेज के हिसाब से मैं मैनेज कर दूंगा, और 80 करोड़ मैं प्रो रेटा बेसिस पे सबको पे करूंगा और ये कंपनी मैं ले लूंगा। तो एक वे वो है। दूसरा वे कि अगर कोई कंपनी उसको टेक ओवर नहीं करना चाहती और डेट रिजॉल्व नहीं करना चाहती, तो फिर वो लिक्विडेट हो जाती है। लिक्विडेट हो जाएगी तो सारे एसेट्स बेच दिए जाएंगे कंपनी के, कंपनी का सब कुछ लिक्विडेट कर दिया जाएगा, और जो पैसा बचेगा उसको सेक्शन 53 में वाटरफॉल मैकेनिज्म दिया हुआ है आईबीसी में, उस प्रेफरेंस के हिसाब से सबको वो पैसा मिल जाएगा, राइट। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप तक कोई पैसा ही ना बचे ऑपरेशनल क्रेडिटर, क्योंकि प्रेफरेंस में बहुत लास्ट आते हैं वाटरफॉल मैकेनिज्म में। तो ये बहुत ही माइंडफुल चीज होना चाहिए कि आप आईबीसी में ऐसे ही ना चले जाए। अगर कोई कंपनी ऐसी है जो वैसे भी आपका पैसा नहीं दे रही थी और आईबीसी में जाने के बाद भी नहीं देगी, तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है आईबीसी। तो फिर आपको एज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर खुद 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे सीआईआरपी कॉस्ट के लिए, और फिर वो आगे बढ़ेगी, और आपको ये भी गारंटी नहीं है कि आपको पूरे पैसे मिलेंगे या नहीं, राइट। तो ये आईबीसी हो गया।
इसके बाद मैं लास्ट आपको बता देता हूँ सीपीसी, कि अगर मान लीजिए आपका आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं है। एक तो आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है परचेज ऑर्डर में, इनवॉइस में, अग्रीमेंट में, समझ रहे हैं आप? तो अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज है आपका, तब तो सिर्फ आप आर्बिट्रेशन कर सकते हैं, तब आप सिविल सूट नहीं जा सकते। और अगर आपका आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं है, तो फिर आपके पास, और आप एमएसएमई भी नहीं है, या फिर मीडियम है, या फिर ट्रेडर है, तो फिर आपके पास जो एज ओल्ड वे आउट है टू रिकवर मनी, वो है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। आप रिकवरी ऑफ सूट फाइल कर दीजिए सिविल सूट में जाके। इट टेक्स सम टाइम, बट देन ये आपका एक लौता मैनर है जिसमें आप रिकवर कर सकते हैं। सेम चीज है कमर्शियल कोर्ट एक्ट। कमर्शियल कोर्ट एक्ट बस इससे इसमें डिफरेंस है कि 3 लाख के ऊपर का जो डिस्प्यूट है आप उसको कमर्शियल कोर्ट में ले जा सकते हैं। सीपीसी और कमर्शियल कोर्ट जो है एकदम सिमिलर प्रोसीजर है, बस कमर्शियल कोर्ट में टाइम बाउंड है चीजें। कि अगर मान लीजिए कि सीपीसी में सिविल कोर्ट में जितना टाइम लगता है, कमर्शियल कोर्ट्स में उतना टाइम नहीं लगता। उसमें टाइम बाउंड की हुई है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जो कहते हैं कि आपको मैंडेटरीली इसको इतने दिन में खत्म करना होगा। और जुरिस्डिक्शन जो बैठती है सीपीसी की, वो वहां पे बैठती है कि अगर मान लीजिए कॉज ऑफ एक्शन जहां से अराइज होता है, और या फिर जहां पे डिफेंडेंट रहता है। तो आपको ये हमेशा याद रखना होगा कि मैं कहाँ फाइल करूंगा, या तो जहां पे ऑपोजिट पार्टी रहती है आपकी वहां फाइल करेंगे, या फिर जहां रजिस्टर्ड होगी वहां फाइल करेंगे, या फिर आपने मान लीजिए उनको सामान यहाँ से आपके अपने उनसे भेजा, अपने प्लांट से भेजा, और वहां पे गया और पेमेंट नहीं हुआ, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि कॉज ऑफ एक्शन हमारे उसमें अराइज हुआ जहां हमारा प्लांट था, तो आप वहां भी फाइल कर सकते हैं। एनसीएलटी का जो है आईबीसी में जुरिस्डिक्शन हमेशा जिस कंपनी पे आप केस कर रहे हैं वहां की एनसीएलटी में जुरिस्डिक्शन होता है, और एमएसएमई में जुरिस्डिक्शन जो है जहां पे एमएसएमई रजिस्टर्ड है वहां पे एमएसएमई जुरिस्डिक्शन होता है। और जो लास्ट एक चीज है, अगर आपको बहुत ज्यादा एप्रीहेंशन है कि कोई आपका पैसा रख लेगा, या फिर कोई आपका पैसा टाइम पे डिसबर्स नहीं करेगा, देन एज अ सिक्योरिटी मेजर यू कैन ऑब्टेन अ पोस्ट डेटेड चेक फ्रॉम देम। पोस्ट डेटेड चेक अगर आप ले लेते हैं उस अमाउंट का, और आगे का डेटेड है वो अगर, तो आप पेमेंट टर्म जैसे ही खत्म होगा वो बैंक में आप जाके टेंडर कर सकते हैं। एंड इफ इट गेट्स बाउंस्ड, तो आप उसको सिविल सैंक्शन, क्रिमिनल सैंक्शन दोनों रख सकते हैं, जो कि चेक बाउंस का केस होता है, तो आप उसके थ्रू भी पैसा अपना रिकवर कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल द वेज इन विच यू कैन रिकवर योर डिलेड पेमेंट इश्यूज। और जो टिप्स एंड सजेशंस थे हमारे, वो लास्ट में ये है कि अगर आप एमएसएमई रजिस्टर्ड है, तो आप हमेशा एमएसएमई का जो नंबर है, आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है, आपके यूएएन, जीएसटीआईएन, पैन नंबर्स, इनवॉइस, ये सब, आपका एड्रेस जो है, आपका इंटरेस्ट आप कितना चार्ज करना चाहते हैं, वो सारी चीजें आप अपने इनवॉइसेस में, परचेज ऑर्डर में मेंशन करें। और आपको प्री एस्टिमेट, अगर आप एक अमाउंट डिटरमाइन करना चाहते हैं कि अगर आपने ब्रीच किया 2 महीने तक कर दिया, तो आपको एक इन अ वे मुझको एक रफ अमाउंट देना पड़ेगा, तो आप प्री एस्टिमेट भी कर सकते हैं लॉसेस का, ताकि आपको प्रूफ ना करना पड़े बाद में, और आप दोनों अग्री कर सकते हैं फर्स्ट हैंड पे। तो ये सारी चीजें जो थी, आई होप कि मैंने आपको बताई, आपको जो जो नई जजमेंट्स बताए मैंने, हो सकता है कि आप उसमें जाके आगे अपना कंसिलिएशन को वो कर पाए, जो आपका डेट टाइम बार्ड था अभी तक, आप उसको कंसिलिएशन में रिवाइव कर पाए। या फिर आपका अगर मान लीजिए एमएसएमई नहीं ले रही है, जस्ट बाय सेइंग कि योर इनवॉइस इज प्रायर टू योर रजिस्ट्रेशन, देन यू कैन गो टू रिट बाय सेइंग कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लार्जर बेंच को रेफर कर दिया है, दिस इज नॉट अ सेटल्ड लॉ एनीमोर, और इफ इट हैज टू बी डिसाइडेड, it has to be decided by the arbitrator alone, or not by the preliminary inquiry under the MSME. तो आई होप कि आप लोगों के लिए मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाया हूँगा, एंड आई गेस कि अब हम लोगों को क्वेश्चंस एंड आंसर्स पे प्रोसीड करना चाहिए। कैन वी टेक क्वेश्चंस नाउ, सोनिया? Yes, Pratik ji. So I would request all my participants that we are all ready to solve your queries, questions, doubts, anything regarding the session and the topic, please. So if you want, you can just raise your hands, and I see few of them. So I'm going to start with them first. So I have Amita ji. Amita ji, please ask your question. Can you please unmute Amita ji and she can ask a question? Okay, so we got Akshay ji. Akshay ji, good evening. Please ask your question. Can you unmute Akshay?
Hello, am I audible? Yes, yes, Sakshi ji, Akshay, good please. evening. Please ask your question. Okay, so recently our company, crossed the turnover of 100 crores. So Okay. now it will be not be part of micro and medium, right? Because Mhm. micro and small, right? Because Yes, of the yes, turnover. yes. So if my customer defaults, so what is the way which I can go? Because MSMED Act will not apply, right? Yeah. You are a medium enterprises, you are saying. So recently this year we crossed 100 crores, right? Oh, So okay. Okay. so the category will change, right? It will now But consider under medium. हाँ, हाँ. The category should change, but then as per the new MSME limit that I have stated in the webinar, मुझको Mhm. लगता नहीं है कि आपके जो small enterprises हैं, up to only 100 crore. You have crossed 100 crores, you're saying. Yeah, so we did Okay. 98 crores to be Okay. precise. And your and So your and your and your investment in plant and machinery has also exceeded 25 crores. that I need to check, but it should be like no around 25 Okay, above. then you have exceeded the definition. Now you are in medium enterprises as per my view. So अगर आपका you cannot go into MSMED Act. If you'll have to check whether there is an arbitration clause in the transaction documents or not. And if there is no arbitration clause, then the only option that you'll have is to go into summary suits or under the Commercial Codes Act. Okay, so MSMED I can't use, right? No, for medium enterprises, it is not extended, the MSCFC benefit. So what you're suggesting is commercial acts. Yeah, Commercial Court Act. If you kindly go and you check your purchase order or any transaction documents, if there are any, आपके पास कोई transaction document है अक्षय? हाँ मेरे पास है पर अभी मैं ओपन नहीं कर पाऊँ क्योंकि मैंने लैपटॉप ऑफिस का बंद नो कर दिया। प्रॉब्लम, आप उसमें डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्लॉज देखिएगा या आर्बिट्रेशन क्लॉज देखिएगा। अगर वो होगा तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्रेशन कर सकते हैं। अगर वो नहीं होगा तो फिर आप सीधा जाके कमर्शियल कोर्ट एक्ट में जाके सूट फाइल कर सकते हैं या फिर सीपीसी में सूट फाइल कर सकते हैं। दैट इज द ओनली ऑप्शन। ओके 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 आप मेघा को अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं and I'll check those documents for you once and I'll advise you accordingly. If there is an arbitration clause, I'll see if there is an arbitration clause or not. And if there is, then आपको arbitration invoke करना पड़ता है। मैं आपको ये भी advise करूंगा कि first try sending them a legal notice, strongly worded legal notice for the payment of the dues. If they do not comply with the directions of the legal notice, go ahead and file a suit. And if there is no arbitration clause, and if there is an arbitration clause, go and invoke arbitration. okay so yeah thanks now I have the clarity because earlier we were not crossing that limit, so this year we crossed, so I just okay, so if anything is there I will reach out to Neha. Sure. Yeah, So thank if you want, you can just leave interested in the chat session, and after the webinar and according to the availability of Pratikji, we can get you connected, and if you can have one-on-one, that is also possible. So just Yeah, leave that will be interested in the helpful. chat box. Yeah. Yeah, thank you so much. Thank you. So who we have next? We have Archana ji. Amita ji, would you like to ask your question now? Please unmute her. Good evening, Amita ji. Please ask your question. Am I audible? Please ask question, Amita ji. Or meanwhile, we can have somebody else ask question. Archana ji, would you like to ask your question now? I can go through the questions that are dropped in the questions and answers book, Yes, list. Pratikji, that would be wonderful. Before anybody is asking, we can also look into Yes, something yes, if it yes. is in the chat box. Hello, can you hear me? Yes, yes. 1 minute, I think there is some issue with mic, I think. Arjun ji, you are not audible. Can you come towards the network? I think you are not close to the network, and so it's very hard to
Hello? Hello, Yes. I'm not able to hear you. Yes, please ask your question. We are able to hear you. Can you unmute rest of the people and only one person can ask a question so that the voice is not getting echo? Yes, Arjun ji, please ask your question. Can you hear me now? Yeah. Now I can hear. Okay, please. Yeah. So my question is, if I'm not getting the payment even after several follow-ups, so what should be my first step? Hello. Are you registered under the MSME Act, sir? Yes. We have the MSME registration. We are a micro enterprise. You are micro or small? Micro. Micro. And how many days it has been since your payment is stuck from the opposite party? More than 120 days. More than 120 days. So you can go and you can file a MSEFC reference. First, issue them a notice because it is always better to issue them a notice first. क्योंकि बहुत सारे ऐसे cases होते हैं जहाँ पे आप notice देते हैं and you receive a communication from the opposite party saying कि बहुत बार वो लोग अपनी actual difficulty बताते हैं आपको, genuine difficulty होती है वो, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या कमर्शियल विजडम है, बट देन इट इज ऑलवेज बेटर टू सेंड आउट अ लीगल नोटिस सेइंग कि दिस इज द लास्ट frame of time that I'm giving you for making payment. If you do not make a payment, I'll go and I'll file a reference application before the MSME. And if they do not make the payment, you can go and you can file a reference application before the MSEFC. Yeah, but so what is my concern is whether can I send the notice through mail or I have to serve a proper notice only. Process when you file. Sorry. No, what I'm asking is, so can sending a reminder mail can be a notice, or I have to do a proper notice through a lawyer only? No. You can issue a notice by yourself also. That is not a problem. There is no requirement under law to make a notice by a lawyer only. There are certain statute in which a notice is mandatory. Other statutes, the notice is not mandatory at all. So in this case, the notice is not mandatory. But I am saying, in my view, please issue a notice. खुद से भी, या फिर if you want an advocate to do it for you, you can approach an advocate and ask him to do it for you. But then एक notice issue करने से बहुत बार ऐसा होता है कि आपको केस में जाना ही नहीं पड़ेगा, आपका पहले ही रिजॉल्व हो जाएगा. तो आप वो ऑप्शन अवेल करिए, क्योंकि हो सकता है there is a possibility कि you do not have to approach the MSEFC and आपका सेटल हो जाए पहले ही. अगर आपने नोटिस देने के बाद भी वो सेटल नहीं करता है, then I am advising you to go and file a reference before the MSEFC. Okay, so but I can do that raising the reference through online, or I have to go to a court only? No, you can do it any way you are comfortable, sir. You can do it on your company head also. No, I'm asking, I'm not asking about notice. I'm asking about raising the complaint or reference. I can do it online? Yeah, you can do it online. Yes. Okay. That is MSEFC Council. In that I have to do it. Yeah. That's There is a website. MSME.gov.in. Yes. There is a particular website for this. You'll have to go and it is called Samadhan, I guess. You'll have to go and you'll have to fill all the details and everything by your own, and you'll have to upload all of the document that they ask you, and they'll ask you some of the details. If you'll enter all of that, you can make a payment. You can file a reference, or you can ask Megha, and Megha would issue our commercials to you, and in that way we can do it for you. We also file references for our clients. Sure. Okay. Thank you. Yeah, sure. And is there any compulsion that the other party has to reply, or is it like the court can intervene? What is that there? Okay, I will raise a complaint. Look, I'll be very much. Yeah, I got your point. Look, you cannot make any party attend any proceeding. In a way, this is the reality, and this is an arbitration and conciliation process. This is not a court. If you'll go to a court, the court can issue a non-bailable warrant if anyone is not appearing. But then this is not a court, right? So if someone is not appearing continuously, then what they do is they proceed without that opposite party.
So they'll hear you only and they'll pass an award because the opposite party never appeared. Okay, but even after that thing is passed, but even after that, if they are not complying, so then you'll have to execute the award that is passed by the MSME. So if you know whether the company is, what are the assets that the company has, you go and you file, you take that award, you file a application for execution in CPC before your civil court. You say that I have already gotten an award. Kindly please sell all of these assets of the company and please pay my money. They'll do it and they'll pay your amount. okay, got it. Yeah. Thank you. Yeah. So that is the process. It may take some 6 months to 1 year after that award is passed if the opposite party is again not appearing. But then ultimately you will receive your amount if the company at least have that much of assets that equal to your claim amount. Then you will get your claim amount. Okay, sure. Yeah. Thank you. Hi, If Prateek. you Am I still audible? have any other query, you can please write interested in the chat box, and I'll get my team to get you directly in touch with Prateek ji. Am I audible? I have a Yeah, question. yeah, yeah, you are. Thank you. Yeah, hi, Prateek. First of all, thank you so much for all the insights, and we had a very learning session, I think. Thank you so much. Thank you so much for being patient with my session. There were a lot of issues today. I'm really sorry for those issues. Okay. So, Prateek ji, I have a somehow a different situation here. See, Mhm. I am a Bhiwadi-based contractor who is into installation and fabrication of PEB buildings, right? Okay. So what happened with in my case that I awarded erection job to one of the contractor, right? Mhm. They are based out of Muzaffarnagar, and this contractor asked me for an advance amount. I gave him the advance amount. It's called mobilization charges. That amount was 40 lakhs, right? They started working. They did a lot of job on the side. However, in the term of all these transactions, they kept asking me for amount to for money to keep running the site, right? Okay. I kept giving them amount, advances, so that they can keep running the site. They started to show that they are running out of finances. So because I had pressure from client, which is a very big corporate, as I had pressure from client, so I gave them money, and so that they can keep working. Eventually, how it happened that when we also faced some cash crunch. We also had some delayed payments from the party. Then we asked them to, why don't you use, and when they came back to us for more money, we asked them, why don't you use the money which you have in advance as advances in a ledger. At that time, they said no, they don't have the money. All the money has been spent, etc., etc., and that now they cannot run the site if I don't make the payment. So they ran away from the site. Now they have an advance of approx 80 lakhs in their ledger, right? Okay. So how to proceed? This is a very fresh case. It's been just 2 months since they have left the site and they haven't responded on our payments. So, however, they have written it on the mail that yes, they agree with the ledger and they will be able to pay only if we award them some more work. However, they don't have any money to pay to us directly. So, how to proceed with that? Can you please guide me? So they are not ready to work on the site anymore. They are simply saying that I'll return your money. They are saying that they can work on the site, but they're asking me for more money, which I cannot give them because Okay, so now they are deviating from the earlier terms which you right, parties agreed, right. and now they cannot work. So they are saying whatever amount you have paid to me, I'll pay you back, but after some time. No, so exactly after some time नहीं बोल रहा मैं पैसा तो आपको दे नहीं पाऊंगा हिंदी में बोलता हूँ मैं समझ गया कि वो यार आप मेरे को और कोई डायलेटरी काम दे टैक्टिक्स दो से. आप मेरे को और कोई काम दे दो मैं वहां से सेटल कर दूंगा Okay, are you registered in the MSME? हाँ माइक्रो Okay. So you can make a reference application. This is a fit case for making a reference application. इसमें क्या होता है ना कि all contractual disputes are taken care of by the MSME. तो अगर आपका मान लीजिए कि आपने उनको दिया था mobilization advance and they had to mobilize the plant machinery and they had to initiate साइट पे काम work. किया 4-5 करोड़ का लेजर है प्रतीक जी
But हाँ हाँ हाँ, eventually, I got it, I got your point that you have a ledger also which is accepted by the opposite party. तो इसमें आपके पास एकदम सिंपल ये है कि आप उसको MSEFC में रेफरेंस कर दो. Try giving them a notice first कि if you are able to come and mobilize it and take the work forward on the agreed terms, I have no problem. Please come and do it, and else please return my money with along with the interest, and if not, in 10 days or 15 days, whatever time you want to give it to them, give them, and you file a reference if they do not make the payment to MSEFC. in that case, जो अगर कोर्ट या ये MSME कुछ उनसे so how do I put it, मतलब they don't have, I don't see any assets with them, so कैसे रिकवरी कैसे होगा MSME का, इनके से पैसे से कैसे रिकवरी होगा? देखिए, ऐसा तो नहीं होगा कि कोई भी एसेट्स नहीं हो, पेड अप कैपिटल होते हैं कंपनी के, और बहुत सारी हाँ ऑफिसेज होती हैं, और कोई ना कोई प्लांट मशीनरी, ऑफिस के अंदर फर्नीचर, फिटिंग्स, गाड़ियां, ये सारी चीजें जो भी कंपनी ओन करती है, एनीथिंग विच द कंपनी ओन्स, यू कैन, मतलब कि आप जब एग्जीक्यूशन करने जाएंगे, एंड एग्जीक्यूशन की बात तब आती है ना जब कंसिलिएशन में आपका कोई सेटलमेंट नहीं आया, आर्बिट्रेशन के अवार्ड मिलने के बाद भी वो आप पैसे नहीं दे रहा है, अब वो अगर आपको पैसे जबरदस्ती दे ही नहीं रहा है, तब तो फिर आपका ये एग्जीक्यूशन के उसमें आएंगे, तब आपको एग्जीक्यूशन तक जाना पड़ेगा. और जब आप एग्जीक्यूशन तक, हाँ, जब आप एग्जीक्यूशन तक जाएंगे तो फिर ये बात आती है कि उनके पास कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए कि आप कोर्ट को बताएं कि ये चीज आप बेचो और इसका पैसा जो है आप मुझको दो. अब मान लीजिए कि ये भी हो सकता है कि कंपनी उससे पहले ही जो है वो बंद कर दे अपने आप को, ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सिविल कोर्ट जा सकते हैं, ये बोल के सिविल कोर्ट ही जा सकते हैं पहले, ये बोल के कि ये जो कंपनी है ये बस इन्होंने फ्रंट पे रखा था, डीलिंग जो है, इनकी लायबिलिटी जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर की ही थी, ये जो कंपनी है इट वाज डन जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिफ्रॉडिंग पीपल, जो कि मेरे साथ हुआ है, तो यू काइंडली शिफ्ट द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी टू द डायरेक्टर. ये होता है इन लॉ में, इन प्रैक्टिस में, बट देन इट इज अ वेरी behemoth ऑफ अ टास्क फॉर इफ यू आस्क अ लीगल प्रोफेशनल, तो ये जनरली कोर्ट्स करती नहीं है, बट देन इफ यू एबल टू प्रूव, देन It's a proprietor firm, sir, so that should not be a problem. Company is okay, it's a proprietary firm. Hello. Yes, I can hear Yes. you. Then the individual is anyway liable, right? Right. Yeah. Okay, so this reference thing, I guess it's an expert thing, or can I do it on my own, or shall I reach to Damita for? You can check, but since we do it after taking a fee, we cannot on a live webinar tell you that how to do it. Right? Yeah. I'm just asking to how shall I proceed it on my own, or should I? Yes, if you're knowledgeable enough, if you know how to read and write, then it shouldn't be a problem. I cannot read legal language, but yes, I can read it right. No. It is simple. It is not something alienated for a layman. I'll try. Otherwise, I'll reach out to. Yeah. No problem. Thank you so much, Pratik ji. Thank you. No problem. Okay, so Archana ji, would you like your question now? Or we can have Mr. Panchal. Maltesh Panchal ji, would you like to ask your question? Please unmute him. Thank you so much, sir. So good evening. Please ask your question. Yes. आ रहा है आवाज? Hello. Yes, sir. Thank you so much. ये सेशन बहुत ही बढ़िया था और नॉलेजेबल था. सर मेरा क्वेश्चन एक्चुअल में नेक्स्ट ये है कि सर ये जो जिस हिसाब से आपने हमारा जो ये पेनल्टी है जो भी लेट डिलीवरी लगे दोनों के लिए ठीक है, हमारे सप्लायर के लिए और डेटर्स के लिए ठीक है, तो मेरा कंसर्न ये है कि समझो कि जितने भी मेरे डेटर्स है ना, वो डेटर्स के सामने मेरे को अभी क्या है कि केस फाइल करना है, जो MSME में हम जो मतलब नोटिस दे रहे हैं, उसके लिए मेरे को क्या क्या टेक केयर करना पड़ेगा, और क्या ज्यादातर करूंगा तो मेरे को उसमें रिजर्वेशन मिलेगा. उसमें क्या हो रहा है सर, मेरा जो पेमेंट है ना, वो पेमेंट कैसा होकर नॉर्मली क्या होता है, हमारा PBG रहता है ठीक है, तो PBG यस 10% होल हो जाता है, तो वो क्या होता है कि कभी कभी क्लाइंट क्या करता है, वो पैसा देता नहीं है. और दूसरा ये भी सिनेरियो आके खड़ा रहता है कि कुछ LD अमाउंट रहता है ठीक है, पर वो LD अमाउंट में क्या होता है कि सर उसने एज ऐसे ही
LD इम्पोज कर देते हैं और Yes. सेटल कर देते हैं आपका पैसा। नहीं, उसने होल्ड करके रखा हुआ है, बट हाँ। वो उसके सामने डेबिट क्रेडिट नोट देता नहीं है, बट वो ऐसा पैसा होल्ड करके रखता है, और वो ना अच्छा। वो पैसा निकालता है ना उसके सामने कुछ हमें डॉक्यूमेंट देता है। ठीक है, तो वो हाँ। उस टाइप का बहुत सारा हमारा मतलब पैसा है जिसके लिए मेरे को स्टार्ट कर तो रहे हैं वो हम लोग। चीज वो आगे ना, वो उनके कहने से सिर्फ ऐसा नहीं हो जाता। ओके, You want to start your recovery processes from all these debtors, you say? नहीं, हमारा रिकवरी प्रोसेस तो चल ही रहा है, हम लोग कंटिन्यूसली उससे फॉलोअप भी ले रहे हैं। ठीक है, बट कभी कभी क्या हो रहा है कि उनके हैंड से आंसर नहीं मिलता। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा यूनिट है, तो मतलब हाँ, बंदा रिकवरी प्रोसेस इन अ वे आपने कोई लीगल स्टेप नहीं लिया है अभी तक। नहीं आप नहीं अब नहीं, आप जो, हाँ, जो एवरीथिंग आपको नहीं, आप रिप्लाई कर रहे हैं, आप उनके लिए लीगल स्टेप्स लेना चाहते हैं। नहीं, रिप्लाई भी नहीं दे रहे और पैसा भी नहीं दे रहे, दोनों के पैसा लिए। भी नहीं दे रहे, यस, ऑब्वियसली आपसे 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 बात नहीं कर रहे हैं, नहीं आपका पैसा दे रहे हैं, नहीं आपको यस, रीजन बता रहे हैं, यस। और राइट? दूसरा क्या होता है कि बड़ा यूनिट है, समझो लाइक ग्रासिम है या वगैरह है, वो लोग क्या है समझो कि उनके बहुत सारे परचेसर चेंज हो जाते हैं, तो हमारे पास जो भी मतलब रजिस्टर जो मेल एड्रेस हो गए उससे हम फॉलोअप ले सकते हैं। उससे ज़्यादा कुछ हमें उसके अकाउंट या फाइनेंस का उनका कुछ डिटेल्स हमें मिलता नहीं है। ठीक है, तो वो भी आप बहुत सारे MSME है ना? केसेस। यस, MSME में ही है। अच्छा, ठीक है। तो आप इन लोगों को क्या कर सकते हैं कि आप इन लोगों को एक बार अपना कम्युनिकेशन दे सकते हैं, या फिर आप लीगल नोटिस भी भिजवा सकते हैं इनको, ये बोल के कि आई एम गिविंग यू अ लास्ट चांस टू pay me the amount that is due for a long time, and if you do not pay us, we'll go and we will file a reference application, and if they do not pay, go and file a reference application। जब उनको बुलाया जाएगा तब आप ये सारी चीजें वहां बोल सकते हैं आर्बिट्रेशन में कि दे डू नॉट हैव इशूड एनी डेबिट नोट्स, बट दे से कि मैंने आपका सेट ऑफ कर दिया है, लिक्विडेटेड डैमेजेस लगा दिया आपके PBG पे, तो आपका आप कुछ नहीं देना है। तो ये इनके बस ऐसे ही बोल देने से नहीं होता है, दे ऑल्सो हैव टू प्रूव कि आपने डेबिट नोट जो लगाया, लिक्विडेटेड डैमेजेस जो लगाया, आपको क्या लॉसेस हुए, आपको आपको क्या इतना ही लॉसेस हुआ जितना आपने सामने वाले पे लिक्विडेटेड डैमेजेस लगाया है। तो जैसे आपको प्रूफ करना पड़ता है, उनको भी प्रूफ करना पड़ता है। तो अब जब आप बता रहे हैं कि उन्होंने आपको कभी डेबिट नोट्स इशू ही नहीं किए, कभी आपको बोला नहीं कि आपसे प्रॉब्लम्स हैं मुझको काम करने में, तो आप ऑब्वियसली प्रूव नहीं कर पाएंगे व्हेन इट गोस फॉर लिटिगेशन। तो आपका जितना ओरिजिनल क्लेम है वो आपको मिलेगा ही। ओके, और दो चीज़ है उसमें, हम मतलब ऑनलाइन हमें केस फाइल करना है उसके लिए MSME में। MSME में ना? हाँ, यस यस। तो उसका कोई नेक्स्ट कोई सेशन वेशन होने वाला है, मतलब कि हम लोग कैसे केस फाइल करें, क्या क्या उसमें मतलब एक ऐसा कोई हमें सेशन मिलेगी जिसमें हमें पता चले कि इस तरह से हम केस फाइल कर सकते हैं, ऐसा कुछ? That I'll have to ask from the manager, the one who manages the Udyamita helpline, and we'll have to get together and we'll have to decide whether we want to do that webinar or not. But then आप advocates के पास जाएंगे तो they generally charge for this, making reference applications and everything. तो एक ये ऑनलाइन ही होता है, आप इस पे जाके सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा ऐसे करने के लिए। बट आपका मैं सजेशन लेता हूँ, हम लोग इस पे सोचेंगे कि वेदर वी वांट टू डू दिस वेबिनार और नॉट। बट देन ये बहुत ही इजी है, अगर आप खुद से भी ट्राई करेंगे तो आपको पता चल सकता है, नहीं तो आप किसी रिलेवेंट एक्सपर्ट से मिल लीजिए। ही विल चार्ज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट फॉर द फाइलिंग ऑफ रेफरेंस एप्लीकेशन एंड ही कैन डू इट फॉर यू। ओके, और ये हमारा MSME के ही सामने रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कर सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। दैट इज नॉट गिवन इन लॉ कि सामने वाला बायर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, दैट इज इररिलेवेंट। ओके, दूसरा चीज़ क्या होता है कि उनका जो कभी कभी क्या होता है, उनका प्रॉपरली पेमेंट एडवाइस नहीं आता है, लेजर रिको नहीं कर पाते, क्योंकि कितने क्लाइंट्स इतने भी ऐसे भी होते हैं कि ना वो लेजर देने में इंटरेस्टेड है ना पेमेंट एडवाइस देने में इंटरेस्टेड है। ओवरऑल द स्टोरी ऐसा है कि मेरा तो इतना आउटस्टैंडिंग दिख ही रहा है, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि समझो कि मैं केस फाइल कर रहा हूँ तो कुछ उसके सामने कुछ ना प्रूफ देना पड़ेगा मेरे को कि दिस इज अ PO नंबर, दिस इज इनवॉइस नंबर, हाँ, PO नंबर इनवॉइस देने पड़ेंगे आपको। अगर आपके पास नहीं है PO और इनवॉइस किसी ट्रांजैक्शन का, तो आपको एक एफिडेविट फाइल करनी होती है लॉ में कि जो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा हुआ था हम दोनों के बीच में, वो आपको स्वेयर करना पड़ता है लॉ में, तब वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, या ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और सर, और अगर मेरे को और भी कुछ अगर आपसे पर्सनली पूछना है तो उसके लिए sure, you can get कॉन्टैक्ट। in touch with Megha and
Sonia and all of the people from Udyamita helpline, and they'll be happy to connect you with me. Okay, thank you so much again, sir. Thank you. Okay. So we've put our email IDs, contact number in the chat session. We've broadcasted to each and every participant. So please note it down. Even after the webinar, you like to talk, you want to have any query or discussion, you can get in touch with us so we can put you directly to Prateek ji, but it will be only according to his availability. So you need to be just little be adjusting, but we can get that through. Okay. So I think Prateek ji, we are already on time. It's already 6 o'clock. Okay. Just last one, madam. Just last one. No problem. No problem. ये जो PDF जो हमने पूरा ये मतलब जो भी हमने किया ना वो वेबिनार में वो शेयर किया जाएगा ना? क्या पूछ रहे हैं आप पंचल जी? मैडम जो ये he is asking for the PPT that we used for. देखिए अभी हम ये वेबिनार कुछ दिन में सीधा अपना YouTube चैनल पे डालेंगे, तो आप ये वेबिनार फिर से अटेंड कर सकते हैं. People who have missed 5-10 minutes or whatever because there were some glitches. Of course, we'll be editing those parts and it will be there on the YouTube for any other query जो आपने मिस कर दिया है, जो आपको अभी समझ में नहीं आया, आप वापिस उसमें YouTube पे जाके दोबारा से इसमें देख सकते हैं. सोनिया, if I may, सर आप ये सारे जो वेबिनार्स है ना उद्यमिता हेल्पलाइन आप सर्च करें YouTube पे, उस पे मेरे जो मैंने आपका वेबिनार किया है रिकवरी ऑफ डिलेड पेमेंट टू MSME, वैसे बहुत सारे और एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पे, लीगल एक्सपर्ट्स के वीडियोस मिलेंगे आपको सेम टॉपिक पे. मेरे भी वीडियोस मिलेंगे आपको पुराने, जिसमें ग्लिचेस नहीं होंगी. आज तो थोड़ी ग्लिचेस थी, वो पर्टिकुलर डे टू डे पे होता है सर, ये हमारे हाथ में है नहीं उतना. तो आज थोड़ी ग्लिचेस थी तो आपको उतना अच्छे से नहीं हो पाया होगा, तो आप दूसरे वीडियोस को रेफर कर सकते हैं. आपको उसमें पूरा ये प्रेजेंटेशन दिखेगा. द ओनली प्रॉब्लम दैट आई हैव विद शेयरिंग द प्रेजेंटेशन, बिकॉज दिस इज माई मेड प्रेजेंटेशन सर, जिसमें मेरी मेहनत लगा के मैंने बनाया है, तो दिस इज ओनली फॉर माई एक्सक्लूसिव यूज. सो आई एम रियली वेरी सॉरी सर कि ये चीज तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने ये चीज शेयर कर दिया तो ये जो मैंने चीजें बनाई हैं टू लीड अ वेबिनार ऑन दिस थिंग, सो ये मेरा मेहनत पूरा डाइल्यूट हो जाता है सर. सो मेरा कोई रेलेवेंस नहीं रह जाएगा ना अगर मैं अपना पूरा मटेरियल आपको दे दूं कि जो यूज भी कर लेगा, तो जो नॉलेज आपको है, आप जिस तरह से समझा रहे हैं एक चीज, बिकॉज जो ये 5-7 साल में जो मैंने नॉलेज गैदर की है सर, वो अगर मैं आपको आज दे दूं एक PDF में, तो फिर मेरा रेलेवेंस नहीं रह जाएगा. तो बस यही प्रॉब्लम है. नहीं, किसी का PPT आप लेके उसको वैसा ना एक्सप्लेन कर पाएंगे, ना समझ पाएंगे, ना समझा पाएंगे. इसके लिए आपको अपना मेहनत खुद करना पड़ेगा. दैट इज व्हाट आपके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि सारे वीडियोस हैं. यू कैन गो एंड यू कैन रेफर ऑल दोस वीडियोस. यू विल गेट दिस प्रेजेंटेशन ओनली, यू विल गेट इन वीडियोस. तो आप वहां से देख सकते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए एक उसमें, जैसे जैसे मैं स्लाइड्स वो करूंगा, तो दिस यू कैन डू. Thank you so much. Thank you each one of you. Thank you. And if there are any questions which I am not able to answer, kindly Sonia, please connect them to me. I'll be happy to answer each and every question. Certainly, Prateek ji, we'll make a note of this, and after the webinar, I'll have some of the team members to get you connected, and people who have mentioned interested will be made connected to you as per your availability. Because there are a lot of questions today. There are a lot of questions in the comment section also. I cannot possibly deal with each of them in a short webinar like this. But all of these questions I would be very much happy to answer. You just please connect them to me. We'll be passing on these questions to Prateek ji, and I'm sure Prateek ji will answer them, and we'll forward it to you, each one of you individually, who are still waiting for their answers, because still we are running out of the time, so it's just not possible that we include each one of you. But yes, we'll be passing on these questions to Prateek ji, and Prateek ji will answer most of them. Since many of them have already been taken care in the session also, so you can go in the session, and again I told you that it will be uploaded on YouTube channel, so you can go and listen once again. So thank you each one of you for joining us from all parts of India, and we're really grateful to each one of you. And thank you so much, Prateek ji, for being a wonderful speaker like always. And I think each one of us have been enlightened
by all your knowledge and intelligence you share, and the patience. Thank you for the patience for each one of you also, because we had some glitches today. So we'll try to be better every time. That's what we do. So thank you so much, and we'll have you. We'll be having Prateek ji very soon again. So we'll get you connected again. So thank you so much, and looking forward to it. Maybe meet soon. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you. Shall I leave now? Sure, Prateek ji. Thank you so much. Thank you so Sure. much. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. Thank you.